I hope everybody is back once again. This was a small cut just to test the internet connectivity and everything else. I hope everybody is connected again. Yeah. So, yeah. So we were talking about the entire journey and the roadmap that we have to, go through. So the destination that we have chosen so far for this course is artificial intelligence, right? So I was taking a session, the other time, and I was discussing with the people that they have some misconception whether whom and what to actually talk about the entirely correlatable topic to artificial intelligence, and what is this artificial intelligence totally, right? So in one single word, if you define this artificial intelligence is something that actually mimic the human being. Okay, mimicry in terms of the decision taking powers that we people have in the whole universe, that many out of many species, human are the intelligent one, right? The most intelligent one. And the reason behind is because of the decision taking powers. So how we are capable of taking those decisions so smartly, so fast, and so accurately, because of what we learn so far, right? Depending upon our experiences of different kind and different at different age gap, at different instance, that particular experience gives us the confidence to take those kind of decisions. Also, those decisions may or may not be right, right? So if those decisions are right, so what are what are the parameters upon which we are capable of taking those decisions, right? And why they are right. So all these things are correlatable with the artificial devices, right? Or the real devices that you have in your home that you actually use daily, right? So if those devices, in terms of devices, like you can call those devices as your computers, mobile phones, laptops, right, servers, or maybe Alexa or such kind of other, like your router also. Some of you might have routers, and in upcoming years, suppose that router would have some specific feature that that it will all automatically connect, and it will automatically connect with the people. Also, it will take care of all the security in every aspect, right? So there are many such concepts upon which you can be interacted with the kind of smart devices around you, right? You can have home automation systems. You can have TV remotes. In upcoming years, you would see some smart devices to control entire home, right? Smart controlling devices. So all these things may have, like today, you might have seen drones also. Drones, right? You might have seen IoT cards also. They are taking their own decisions very smartly. So all these devices around you, right, are capable of taking decisions accurately and as fast as possible. If those decisions could be more fast means like they could be more on real time, right? Suppose we are driving a car and the car has got accident, right? And that accident would be detected, and those airbags would be opened. So the time gap between all these activity would be very less, in microsecond or nanoseconds even, right? So within nanosecond, will it be will that system be capable of taking such smart decisions, accurate decisions, right? So how it is important and how it is possible also, right? So this is what is the journey, this is what we have a destination. And all in all, if this destination means this AI that we want to actually create, that we want to actually generate, right? So we need to understand whether how to reach up to this particular level, right? And what are the parameters, what are the steps that we have to take care of, so that we can actually learn how to design your artificial intelligence systems, right? And these AI systems could be utilized in many different domains. Okay, so let us start with the basic journey that we have to start from. Suppose let's take an example that your AI is something that you have to reach up to a particular destination called Mumbai. Okay, you need to reach up to Mumbai, right? Let us be very genuine. Okay, so you want to go to Mumbai and you are there at your home. Suppose your home is there in Delhi, right? So there could be many different paths, right? So in this journey of artificial intelligence, the first specific fundamental that you need is one specific programming language, right? However, there are multiple programming languages
which you can be, you can use, and there can be a great need of those languages while working with different other domains also. Like domains are web development, application development, hardware development, automation, or all those other domains are also connected with those kind of languages. But specifically for AI, artificial intelligence, we're talking about few specific languages which are very popular in the market right now. Okay, so we'll be starting by the fundamental need of this particular AI, and then we'll go ahead with the topics where we'll discuss about data. Okay, and there'll be some specific methodology where we can discuss about all those terms, so that this data can be analyzed, this data can be visualized properly, so that we can take a smart decision upon that data. Because data is one of the raw material. Everything around you, either you have saved that in your hard drive or not, you have captured that or not, is a kind of data which is totally virtual. Okay, anything virtual around you, either you have saved that in your hard drive, pen drives, or any other storing devices or not, but that is what is the data, right? So you are interested of what? Taking smart decisions based on that particular data which you have around you, right? Maybe you are capturing it from different sources. You're capturing it from internet. Many people are using Facebook. For Facebook, this data is going to be generated from all across the world, right? So how this data is going to be analyzed, and this analysis should be very real time, and this analysis should be very accurate also, so that businesses can be run upon these kind of analysis, so that kind of decision giving better services to the customers, better services to the people, could be analyzed properly in fast on real time, right? So the specific need that we have to go through is one specific programming language. And here for this course we'll be using Python, one of the fastest interpreter, one of the fastest programming language, one of the fastest maybe the conversion techniques or the algorithms that we have available already in this Python. Because of those reasons, also the another reason could be many people, I'm sure some of you would be aware with the Python already, right? And if you are not, I'll give you the sources. We'll be starting from zero, because we'll be starting from zero. So I'll give you the complete hint how to start with and where to get the complete idea about this Python, so that at least we'll be able to, yeah, some people have. Okay, so you are from electrical branch. See, irrespective of engineering branch, either you are from electrical, you are from CSC or other branches, like I'll be going neutral to any particular topic, right? So let us understand. Yeah, some of them are talking about the language that I should use both Hindi and English. So let me ask everybody of you whether should I go in Hindi also sometime? Will it be comfortable for you? Yes, sir. Anybody is from South India or other states, so that they. Yes, sir. Who's there? Anybody who will be getting some difficulties? Anybody? No? No problem. Okay. So किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक तो नहीं है ना? Very good. So we can go in both Hindi and English. Very good. Thank you, Naman. तो बात ये हो रही है कि हम लोग पूरे पाथ को कैसे सेट करें. Thank you, Mahir. हाँ, तो पूरे पाथ को सेट करने के लिए हम लोगों ने बात कर ली. We'll be starting from one of the specific first need, and that is programming language. और भी programming languages हैं. We have different programming languages like R. R language बहुत popular है data analytics के लिए, right? We have another programming language called Java. काफी लोगों ने already वो experience कर ली होगी, जो लोग engineering के second year और third year में होंगे, है ना? जिन लोगों का ये पहली बार start है इस domain के लिए या programming development के लिए, right? कोई भी programming language कभी भी use नहीं की है, उसके लिए भी ये कोर्स बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट होने वाला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं. R and Python mostly used for ML, sir. Yes, exactly.
है ना। एनालिसिस के लिए आर भी बहुत पॉपुलर है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव वन लैंग्वेज कॉल्ड मैटलैब, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। तो जितने भी रिसर्चर्स हैं वो मोस्टली यूज कर रहे हैं मैटलैब को। मैटलैब बहुत पुरानी है, मैटलैब भी बहुत इजी है जैसे पाइथन है। मैटलैब रिसर्च पर्पस में बहुत यूज में आती है। मैटलैब के अंदर मेथड्स काफी सारे अलग अलग हैं। ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी मैटलैब के अंदर एक टूल बॉक्स है जिससे कि हम लोग ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसको यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत फास्ट है, एक्यूरेट है ना। सो ऐसी काफी सारी अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप यूज कर सकते हो। मैं किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। एवरी लैंग्वेज हैज देयर ओन रूल्स एंड देयर ओन यूज केसेस। कोई कहीं पे ज्यादा यूज होगा, कोई कहीं पे ज्यादा यूज होगा, बट वन फॉर ऑल, है ना। एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मोस्टली वाइडली यूज हो रही है मार्केट के अंदर, जो आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, जिसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। जितने भी बिगनर्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, yes, recording will be available, don't worry about it. So but don't rely upon recording only, because recording में आपको क्वेश्चन पूछने का चांस नहीं मिलेगा। तो प्लीज ट्राई टू बी ऑन दिस पर्टिकुलर सेशन ओनली, राइट। या सो एक बार क्वेश्चन पूछ लो, अगर मैं एक बार आंसर कर दूं तो उसके बाद शायद मुझे लगता है कि आपको बार बार ये सब चीजें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी क्लासेस की, हर क्लास के बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, हर क्लास के बाद में असाइनमेंट मिलेंगे। हर क्लास में मैं आपको क्लास के एंड में इंटरेक्शन करने के बाद आपके पर्सनल डाउट ले सकता हूं। आपके जितने भी डाउट हैं आप अपने पास लिख लें, है ना, आप अपने पास नोट डाउन कर लें, सो दैट एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपके पास अच्छा खासा टाइम दूंगा, सो दैट ये आप अच्छे से उसको इंटरेक्ट कर लें, पूछ लें, आपको दिक्कत ना हो कुछ, राइट। तो जितना सेशन चलने वाला है उस सेशन के अंदर हम लोग, मैं बहुत कम टाइम के लिए थ्योरेटिकल जितनी भी चीजें जरूरी है, मोटी मोटी सी जरूरी है, केवल वो बताऊंगा। जितनी भी और थ्योरेटिकली आपको पढ़ना चाहिए किसी टॉपिक के बारे में, मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, बुक्स प्रोवाइड करूंगा, कोड्स भी प्रोवाइड करूंगा जितने हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। जितने प्रोजेक्ट हैं हमारे सिलेबस के अंदर वो हम लोग इंटायरली करने वाले हैं, एक एक करके करने वाले हैं। कोई एक स्पेसिफिक ब्रांच के लिए नहीं है ये पूरा कोर्स, ना कोई सीएससी के लिए है, ना ही कोई इलेक्ट्रिकल के लिए है। बहुत सारे यूज केसेस हैं, अलग अलग डोमेन के हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, अलग अलग तरह का डेटा बेसिकली मैं पिक करने वाला हूँ अलग अलग टाइम पे। तो आपको ये समझना है कि आपकी ब्रांच के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए, ब्रांच भी छोड़ दीजिए, आपके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, जहां पे आपको चीजें समझ में आ रही, कोई भी एक यूज केस, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो क्या आप कोई एक ऐसा यूज केस जो जेन्युइन हो किसी इंडस्ट्री के लिए, क्या वो आप सॉल्व नहीं करना चाहेंगे? अगर आप यू आर फ्रॉम सीएससी बैकग्राउंड, अगर कोई डेटा आपको मिल जाए इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड का, अगर आपको कोई मिल जाए जेन्युइनली मैकेनिकल और सिविल ब्रांच का, तो नहीं करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि एक सिविल इंजीनियर है और उसको किसी बिल्डिंग का पूरा रोड मैप तैयार करना है, उसको ये चेक करना है कि ये बिल्डिंग की सस्टेनेबिलिटी कितनी है। आजकल आईओटी इंप्लीमेंट हो रही है, काफी सारे सेंसर्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, वॉल्स में अंदर, है ना। बहुत बैटरी ऑपरेटेड सेंसर डाल दिए जाएंगे जो कि एवरी मोमेंट दे विल बी कैप्चरिंग द डेटा फॉर ह्यूमिडिटी, की कितनी नमी है इस दीवार में, क्या अभी फिलहाल टेम्परेचर है वहां का, कोई एयर गैप तो नहीं रह गया है, तो इसकी लाइफ कितनी रहने वाली है। अगर उसका प्रोडिक्शन उस डेटा पे करना है, सपोज करो कोई एक बहुत बड़ा फ्लैट और कहीं पूरी बिल्डिंग बनने वाली है, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई इंडस्ट्री लगने वाली है, उस जगह की कीमत कितनी है, अभी आगे आने वाले टाइम में कितने, ऐसी बहुत सारी अलग अलग तरह के यूज केसेस होंगे। सो दिस कोर्स इज नॉट मेंट फॉर एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ पीपल। I just want to clear you everything that we will be starting from zero. We have already started from zero. मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ हर वो यूज केस जो अलग अलग डोमेन का है, जो आपको समझ में आ सकता है, जिसका डेटा हमें अवेलेबल हो सकता है, जिसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, दैट आई हैव टू चूज, so that you could be literally able to cope up with those kind of examples, and you'll be able to implement those with your computer system as well. Okay, so कोई क्वेश्चन है अभी तक के लिए तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम लोग सेशन को थोड़ा सा कवर करने के बाद एंड में एक बार इंटरेक्ट करेंगे। एनी क्वेश्चन, एनीवन? वेरी गुड, थैंक यू।
सो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोगों ने एक चूज कर ली, एंड दैट इज सपोज पाइथन. ओके, दैट इज सपोज पाइथन. द अनदर थिंग दैट वी हैव टू गो थ्रू अहेड, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद, यानी कि हम लोगों को कम्युनिकेट करना है किसी के साथ, और हम कौन है? अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड की बात करें या एआई की बात करें, तो हमारे लिए हमारे पास एक कंप्यूटर है जो दूसरी किसी कंप्यूटर डिवाइस या किसी स्मार्ट डिवाइस से कम्युनिकेट करने वाला है, या बाहर से बहुत सारे सेंसर्स, बहुत सारा डेटा इंटरनेट के थ्रू आने वाला है, और ये कंप्यूटर हमारा डिसीजन लेने वाला है. तो आप समझ सकते हो कम्युनिकेशन करने के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो चाहिए थी, है ना? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो कि फास्ट कैलकुलेशंस कर सके. डिसीजन लेना मतलब कैलकुलेशन करना, बहुत सारी, है ना, बहुत सारी कैलकुलेशंस हमारे दिमाग में चल रही होती है. ऑल दोस कैलकुलेशन शुड बी डन वेरी फास्टली ऑन दिस कंप्यूटर इटसेल्फ, राइट? तो उसके लिए क्या करना है अपने को? वैसी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम लोग सी लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं. कोई पूछेगा कि पता नहीं बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, कि पाइथन क्यों यूज की? काफी लोग बोल रहे हैं, मैंने भी बोला कि ये इजी है, तो इजी तो बहुत सारी और भी लैंग्वेज हो सकती हैं. जो जो इंसान साउथ इंडिया में रह रहा है उसके लिए तेलुगु, तमिल और कन्नड़, है ना, बहुत सारी मलयालम, बहुत सारी लैंग्वेजेस और इजी हो सकती हैं समझना, ना कि उसके लिए हिंदी और मारवाड़ी होगी, राइट? या हरियाणवी होगी, राइट? सो अपनी लैंग्वेजेस के साथ में कंफर्टेबल होने के बावजूद भी अगर किसी बच्चे को सी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, तो क्या वो नहीं कर सकता एआई के लिए डेवलपमेंट? ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों के दिमाग में. तो ये बिल्कुल तो मेरा क्लियर, क्वेश्चन है, प्लीज. सर सी लैंग्वेज और आर लैंग्वेज में अंतर क्या होता है? बिल्कुल, तो मैं वही चीज क्लियर कर रहा हूँ. सी लैंग्वेज हो या आर लैंग्वेज हो या बाकी कितने भी लैंग्वेजेस हों, सब में डिफरेंस क्या है मैं अभी बता देता हूँ, है ना? तो हर लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस है. सी लैंग्वेज यूज होती है कंपाइलर डिजाइन करने के लिए. मोस्टली जितने भी कंपाइलर्स होते हैं या जितने कंपाइलर्स बने हैं, वो सारे कंपाइलर्स या जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और हैं, उनको बनाने के लिए सी लैंग्वेज की नीड है. सी प्लस प्लस यूज हो रही है बहुत सारे कंपाइलर्स डिजाइन करने के लिए और बहुत सारी लाइब्रेरीज डिजाइन करने के लिए. गेम्स भी बहुत ज्यादा आजकल आपने देखे होंगे, आप यूज करते होंगे सारे गेम्स. अगर आपकी उनकी बैकएंड की बात करें, उनकी फास्टनेस की बात करें, विल बी डिजाइन्ड ऑन दिस पर्टिकुलर C++ and C Sharp also. Java is there for web development, Android application development, right? And Java के बहुत सारे अलग अलग नोड्स हैं, वो नोड्स अलग अलग तरह के एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहे हैं. मैटलैब रिसर्च बेस्ड हो गई है, PHP वेब डेवलपमेंट के लिए यूज में आ गई है, राइट? ऐसे बहुत सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और हजारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, है ना? डोंट गो फॉर द लिस्ट, द लिस्ट इज वेरी वेरी लॉन्ग, right? Let's talk about few of them. The popular one, right? .NET है. ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जाएंगे आप, है ना? आपको अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने हैं, आपको जूम जैसी एप्लीकेशन बनानी है, तो आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ने वाली है. एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काम नहीं चलने वाला. बट पाइथन ने क्या बोला कि पाइथन की स्पेशलिटी क्या है कि ये एनालिटिकल लैंग्वेज है. एनालिटिकल लैंग्वेज है जिसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, और उन लाइब्रेरीज के हेल्प से हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं. और ये जो फील्ड हमने चूज किया है, अगर आप वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो पाइथन से वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, पाइथन से हार्डवेयर भी कर सकते हैं, पाइथन एक इंटायर एक सिंगल ऐसी लैंग्वेज है ना? पाइथन से हार्डवेयर का डेवलपमेंट भी हो सकता है, पाइथन से सर्वर का डेवलपमेंट भी हो सकता है, पाइथन से वेब की वेबसाइट भी बन सकती है, पाइथन से सिक्योरिटी सिस्टम्स भी बन सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी बन सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी बन सकती है. सो फॉर ऑल सच डोमेन्स, जहां भी जिस डोमेन की आप बात करोगे डेवलपमेंट की, वहां पे आपको पाइथन एक सिंगल ऐसी लैंग्वेज मिलेगी, वो काम कर सकती है. जबकि अगर आप देखोगे, अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज बनानी हो या आपको कोई कंपाइलर बनाना हो, तो पाइथन से नहीं बनाओगे आप, है ना? डेवलपमेंट आप कर सकते हो जितने भी मैंने आपको डेवलपमेंट मोस्ट प्रोबेबली बोले हैं. तो पाइथन इज एनालिटिकल लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जिसके थ्रू कैलकुलेशंस बहुत इजीली, बहुत फास्ट हो सकती हैं. ठीक है, बहुत सारी फॉर्मूलाज आप जल्दी से अप्लाई कर सकते हो. अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट? इसके ऊपर कोई और नई ऑपरेशन करनी है, तो दोस थिंग कैन बी डन ऑन दिस पर्टिकुलर Python very easily, right? So let's go ahead.
पाइथन हमें क्लियर हो गई कि हम लोग क्यों चूज कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि इजी है, अगर इजी नहीं भी होती, टफ भी होती, अगर हमें एआई के अंदर जाना पड़ता और हमारे पास पाइथन के अलावा कोई और ऑप्शन होता, वो टफ नहीं होता लेकिन और फास्ट और एक्यूरेट होता और बेटर होता और अच्छे डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता, तो हम वो भी यूज करते, राइट? बट पाइथन इज समथिंग दैट इज एनालिटिकल, easy also, right? Fast as well, right? A huge amount of data can be handled with this Python. ह्यूज मतलब जीबीज टीबीज की बात नहीं हो रही है, इससे भी ऊपर पेटाबाइट्स अगर आपके पास पर डे फ्लो हो रही है, then also you'll be able to cope up with the speed and data that you are getting actually. So इतना सारा डेटा अलग अलग तरह का, किस किस तरह का डेटा आ रहा है। डेटा क्या था, मैंने क्या बताया था कुछ देर पहले कि डेटा ऐसी चीज है जो वर्चुअल है, सारा कुछ वर्चुअल है, जो जो आपके सामने आपके चारों तरफ दिख रहा है, एयर भी दिख भी नहीं रहा है अगर वो भी है ना, हर वो चीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप, मेरे पास एक पेन है, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है, बट इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, इसका कलर, इसका वेट, इसकी लेंथ, इसकी शेप, कौन से एनवायरमेंट में अवेलेबल है, किस किस चीज के लिए अवेलेबल है, कैसे लिख सकता हूं मैं, क्या ये राइटिंग पैड के लिए अवेलेबल है, इसमें इंक नहीं है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, राइट? टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हो सकता है, बट उससे आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, उससे कलेक्ट करने वाली इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत हो सकती है। मेरे लिए तो अभी यही पैरामीटर थे, कोई और एक और नया इंसान आएगा, वो मुझसे नया क्वेश्चन पूछ लेगा, कितना कॉस्ट है इसकी, है ना? तो ऐसे ऐसे नए नए तरह के जो पैरामीटर्स हैं, कौन सी कंपनी का है, कब तो बना, कौन सा मटेरियल का बना है, कौन से मटेरियल का बना है। हाँ एग्जैक्टली, तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट कि जितने भी आपके पास इर्द गिर्द है ना, आपके चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी वर्चुअल चीजें हैं, उससे आने वाली इंफॉर्मेशन आप अगर कलेक्ट कर पा रहे हो, कहीं स्टोर्ड है, वेरी गुड। आप अभी किसी हार्ड ड्राइव में कर लोगे स्टोर, वेरी गुड। नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम आपके ब्रेन में वो अवेलेबल है, सबकॉन्शियस माइंड में अवेलेबल है, मेमोरी कहीं ना कहीं आपकी फिल हो रही है। वैसे ही वो डेटा जो जिस जिस वर्चुअल हम एंटिटी की बात कर रहे हैं, अगर कहीं स्टोर कर पा रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा कुछ टाइम के बाद में, इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप सभी चीजों को स्टोर नहीं कर पाओगे। नाउ द सेकंड बिगेस्ट नीड आफ्टर गेटिंग द डेटा वुड बी, मैं वापस से बोल रहा हूँ, हाँ, 1 million gigabyte, 1 GB इज द पेटाबाइट, नो, अप्रोक्सीमेटली 1 million gigabyte, हाँ एग्जैक्टली 1 million gigabyte इज वन ऑफ द पेटाबाइट, एग्जैक्टली 10⁻15, राइट? सो इतना सारा डेटा आपके पास है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कर चुके हो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों चूज की हमने, क्योंकि ये बहुत फास्ट थी और ये एनालिटिकल थी, यानी कि इसमें फॉर्मूलाज हम लोग यूज कर सकते थे, इस ये मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है, राइट? लेट्स टॉक अबाउट द डेटा। अब डेटा बहुत ज्यादा आ गया हमारे पास और डेली बहुत सारा डेटा और आ रहा है, तो हम लोग इतने डेटा को मैनेज नहीं कर सकते। इस डेटा में से वो इर्रेलेवेंट डेटा हटाना है जो हमारे लिए काम का नहीं है आज, राइट? कल तो था लेकिन वो आज नहीं है, कल हो सकता है कुछ नया डेटा है, तो हमें अपने स्पेस को खाली भी करना, हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, स्क्रैप कितना आएगा हमारे पास, राइट? सो इस पूरे एंटायर रॉ डेटा में से मीनिंगफुल डेटा निकालना इज द एनालिसिस, राइट? ये एनालिटिकल पार्ट है। तो किस बेसिस पे निकालोगे, क्या एक एक चीज को देखोगे क्या? एज अ ह्यूमन, घर में आप क्या करते हो जब कचरा निकालते हो? तो आपके फोन में से अगर आप फोटोज डिलीट करते हो तो देखते हो ना, एक साथ आपने कहीं किसी ट्रिप पे गए, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, 100 फोटोज ले ली, अब आपको लगा कि यार मेरे पास 1 महीने बाद 2 महीने बाद किया, मेरे पास स्पेस नहीं बचा है, तो उस 100 फोटो के एक सेट में से कुछ फोटोज हटा डिलीट कर दोगे, कुछ वीडियोज डिलीट कर दोगे जो रैंडम होंगी। 1 महीने पहले आपके लिए वो सारी 100 फोटोज बहुत इंपॉर्टेंट थी, और 1 महीने के बाद आपके लिए वो 100 में से कुछ 10-20 फोटोज लेस इंपॉर्टेंट हो गई हैं, और थोड़े दिन के बाद में फिर से और लेस इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। सो वैसे ही टाइम के साथ साथ आपको वो मेमोरी को बेस्ट यूटिलाइज करना है, तो इस पूरे एंटायर डेटा में से कैसे आप इररिलेवेंट डेटा को हटा दें, राइट? सो वो कैसे मेथड होंगे, उसको हम लोग बोल रहे हैं डेटा एनालिसिस, राइट? अब ये डेटा एनालिसिस दो तरीके से हो सकता है कि हम बहुत सारे डेटा को अलग अलग तरीके से विजुअलाइज करके देखें। घर के अंदर कैसा डेटा पड़ा हुआ है, आपके रूम में कैसा रखा हुआ है, कोई भी सामान, कोई चीज बेकार हो गई क्या, पुरानी हो गई क्या, चलनी बंद हो गई है क्या, राइट? जो चीज पुरानी हो गई उसको निकाल सकते हैं क्या? जो आप कपड़े पहनते थे वो पुराने हो गए, नए आपको लेने हैं, तो फिर आपको अलमीरा क्लियर करनी पड़ेगी। आपकी बुक्स हैं जो लास्ट ईयर की हैं वो आप निकाल सकते हो, है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप वापस उसी उसी स्पेस को बार बार यूज करते रहते हो स्मार्टली।
तो इस पूरे रॉ डेटा से मीनिंगफुल डेटा निकालने की टेक्निक्स को हम बोल रहे हैं डेटा एनालिसिस, और ये कैलकुलेशन बेस्ड है। जितना अच्छा विजुअलाइजेशन करोगे आप उस डेटा का, अगर आपने एक चीज के ऊपर, घर में आपके पास 100 चीजें हैं और 100 की 100 चीजें एक के ऊपर एक रखी हुई है, तो फिर देख कैसे पाओगे इसमें से कौन सी चीज सही है कौन सी नहीं? तो बार बार मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए क्या करते हो आप अपने घर के अंदर डेटा विजुअलाइजेशन पूरा प्रॉपर अलग डिफरेंट तरीके से करते हो। टेबल एक साइड है, बुक्स अलग रखी हुई हैं, आप अपने अलमीरा में कपड़े अलग रख रहे हो, राइट। सिमिलरली आपके पास जो घर की ग्रोसरी है वो अलग है ना। तो ऐसी इन सब चीजों में से आप ये चेक कर सकते हो, चलो आज किचन साफ करते हैं, आज ये अलमीरा साफ करते हैं, आज ये बुक स्टोर या बुक जो जो शेल्फ है उसको साफ करते हैं। तो उसमें से आप स्क्रैप जल्दी निकाल पाओगे। तो ये सारा आपका मैनेजमेंट है, ये आपकी मेथोलॉजी है, ये आपके मेथड्स हैं, ये आपके जो फॉर्मूलाज हैं जिसके बेसिस पे आप उसमें से स्क्रैप निकाल के बाहर फेंक दोगे और केवल इंपॉर्टेंट डेटा पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। सो वो जो मेथड्स हैं उनको हम बोल रहे हैं जो 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 मेथड बोलो उनको, या जिस तरह से आपने विजुअलाइज किया है, एक तरफ से अलग आपने आपकी सेल्फ को बनाया था, बुक स्टोर अलग बनाया था, है ना, कपड़ों का सेल्फ अलग बनाया था, आपने ग्रोसरी के लिए अलग रखा हुआ था एरिया। सो जिस तरह से आपने इसका पूरा मैनेजमेंट किया, इसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम्स। तो जितनी अच्छी आपकी विजुअलाइजेशन होगी उतनी अच्छी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, उतनी अच्छी एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हो, सो दैट आप उस बड़े से स्क्रैप में से केवल मीनिंगफुल अपने पास रखो और बाकी को निकाल दो। जितना ज्यादा स्क्रैप होगा आपके पास उतना ज्यादा बर्डन होगा, उतना स्लो प्रोसेस होगा, उतना ही स्लो आपकी डिसीजन टेकिंग पावर्स होगी। कुछ लोग बिलीव करते हैं, काफी लोग आप में से होंगे बिलीव करते होंगे कि ये भी सीख लूं, वो भी सीख लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, इसने ऐसा बोल दिया, ये भी सीख रहा तो मैं भी सीख लेता हूँ, इसने ऐसा किया, ये प्रोजेक्ट बना लिया उसने तो मैं भी बना लेता हूँ, है ना, ये डांस क्लास जा रहा है तो मैं भी चला जाता हूँ। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना आप ये सारी चीजों एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे उतना आप अपना टाइम डाइल्यूट कर रहे होगे, फोकस आपका डाइवर्जन में जा रहा होगा, एंड दैट्स व्हाई यू वुड बी एबल टू you would not be able to compete with the people जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए ये डेटा स्क्रैप करना, ये सारी चीजें छोड़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको राइट फोकस को ढूंढने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट, राइट। तो पहला क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड द सेकंड इज डेटा एनालिसिस, राइट। And data analysis would be done based on different methods, different visualizations, and this entire journey is called as data analytics. Okay, so जो भी प्रोग्रामिंग के बाद की जर्नी है एआई तक की, ये एंटायर जर्नी इज इनसाइड डेटा साइंस, राइट। पूरे बड़े से इतने बड़े ग्लोब में डेटा साइंस के एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो उस ग्लोब के किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाने में हमें हेल्प करने वाली है। डेटा साइंस के अंदर बहुत सारे डोमेन्स हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी भी है, ब्लॉकचेन भी है, उसके अंदर आईओटी भी आने वाला है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी आने वाला है, बिग डेटा भी आने वाला है, देयर आर मेनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। अभी हम बात कर रहे हैं एआई की, तो डेटा साइंस एक ग्लोब के अंदर एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है एआई जिसकी हम बात कर रहे हैं। वहां जाने के लिए, जहां हम खड़े हैं वहां से वहां तक पहुंचने के लिए जरूरत क्या है? पहला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा है डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, राइट। एंड आफ्टर एनालिटिक्स द थर्ड पार्ट वुड बी, आपने मीनिंगफुल डेटा रख लिया, इस मीनिंगफुल डेटा से अब आपको लर्निंग करनी है। ये मीनिंगफुल डेटा आप सौरभ को तो कुछ और समझाता है, मैं कुछ और सीखता हूँ उससे। एक क्लास के अंदर एक टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, तो देयर वर 40 स्टूडेंट्स सपोज ओवर देयर, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से समझा, सबने अपने अपने हिसाब से उसको याद किया, एंड देन नेक्स्ट डे सेम चीज मैंने वापस से पूछी, कोई क्वेश्चन पूछा सेम टॉपिक में से, तो 40 में से 40 में से आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स ओनली 2 3 5, है ना, कुछ लोग जल्दी आंसर दे रहे हैं, बाकी कट दे सकते हैं आंसर, लेकिन जल्दी दे दिया इन लोगों ने। क्यों दिया? कैसे हुआ ये सब? कैसे पॉसिबल था ये चीज? सो दिस थिंग इज देयर entirely with the third topic that is called as मशीन लर्निंग, राइट। सो मशीन लर्निंग किस चीज के लिए हेल्प कर रही है आपको? उस मीनिंगफुल डेटा से कुछ मेमोरी मेमोराइज करने के लिए, कुछ तरीके याद रखने के लिए। वो याद रखने वाले तरीके कौन से होंगे, वो मेथड कौन से होंगे, उसके लिए भी एल्गोरिथम्स हैं। सो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हेल्प्स अस टू मेमोराइज some specific information in order to take decisions, right? But ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वहां फेल हो जाती हैं जब आपके पास ये मीनिंगफुल जो डेटा था
जब तक ये छोटा था तब तक तो ये याद कर लेती है। यानी कि मशीन लर्निंग एक ऐसा बच्चा है जो कम मीनिंगफुल डेटा को याद कर लेगा। 10 20 50 क्वेश्चन अगर उसको याद करने के लिए बोलोगे तो याद कर लेगा, लेकिन अगर देयर विल बी मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस, देयर विल बी मिलियन और बिलियंस ऑफ क्वेश्चंस, देन क्या इतना सारा डेटा वो याद कर पाएगा वो छोटा सा बच्चा? ये जो मशीन लर्निंग वाला बच्चा है नहीं कर पाएगा, राइट? सो इसलिए इसको और अच्छे से सीखने के लिए उस मीनिंगफुल, जो कि बहुत बड़ा मीनिंगफुल डेटा है, उसका जो 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 बैंक है वो भी बहुत बड़ा है, उस मीनिंगफुल बड़े से बैंक से आपको अगर फिर से मेमोराइज करना है सो दैट आप अच्छा डिसीजन ले पाए। अच्छा डिसीजन इस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी अच्छी लर्निंग की है। फिलहाल हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो छोटा डेटा था तो मशीन लर्निंग, जब आपका डेटा बड़ा हो गया उसको मेमोराइज करने के लिए, प्लस रोज रोज वो जो बच्चा है उसको वापस से सिखाने की जरूरत ना पड़े। मैंने एक बार सिखा दिया, मैंने एक बार बच्चे को बता दिया 1 2 3 4 5 till 9, मैंने ABCD सिखा दिया, तो बार बार जिंदगी में थोड़ा सा समझाना पड़ेगा उसको। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ गया, 10th स्टैंडर्ड में आ गया, वो इंजीनियरिंग करने चला गया, है ना, वो अलग अलग स्टेज में वापस से ABCD थोड़ा सीखता है। Similarly, once we have trained somebody, once we have trained something, some specific smart device, उसको वापस से ट्रेन करने की जरूरत ना पड़े और नेक्स्ट वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ट्रेन करता जाए, खुद ही सीखता जाए, सेल्फ लर्निंग डेवलप हो। इसके लिए देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड डीप लर्निंग, राइट? सो डीप एनालिसिस करने के लिए और एक्यूरेट बनाने के लिए, जब डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप हैंडल नहीं कर पाते मशीन लर्निंग से, मशीन लर्निंग की कोई भी एल्गोरिथम हैंडल नहीं कर पाती है। And then there is a concept called neural networks, right? It comes under deep learning. न्यूरल नेटवर्क्स आएगा तो आप अपने आर्टिफिशियल ब्रेन डिजाइन कर पाओगे। मशीन लर्निंग इज नॉट टू डिजाइन योर आर्टिफिशियल ब्रेन्स, राइट? सो मशीन लर्निंग के कैटेगरीज हैं कि आप कैसे सीखने वाले हो, उसके मेथड्स क्या हैं, ये चीजें हम लोग इस पूरी जर्नी में देखने वाले हैं। So we'll be starting from the basics. We'll start from Python. Let me tell you about the entire journey in one go, right? Let me share my screen first. इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आई एम श्योर अबाउट इट। तो मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। सर, आप पाइथन के अंदर कौन से एनवायरनमेंट यूज करोगे, जुपिटर नोटबुक या फिर स्पाइडर ऐसे में? आपके हर क्वेश्चन मेरे नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट डिस्कशन का पार्ट है। तो आई बिलीव मैंने जो 2 बार आपसे आपको एनालाइज किया तो मुझे लगा कि आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो वो मैं नेक्स्ट डिस्कस करने वाला हूँ। वेल, आपके क्वेश्चन के लिए हम लोग आप लोग कोई भी एनवायरनमेंट यूज कर सकते हैं। मैं आपको या तो जुपिटर नोटबुक या पाइथन का जो ओरिजिनल एनवायरनमेंट है दैट इज आईडीएलई, ये यूज कराने वाला हूँ, ठीक है? सो फटाफट इस जर्नी को पेन डाउन कर लेते हैं। जो टॉपिक हम लोगों ने अभी बात की है, इसको क्या क्या बोलने वाले हैं और कितनी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, क्या क्या चीज हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है? या सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज, मैं कोई पीपीटी यूज नहीं करने वाला हूँ, है ना? रेयरली आई बी यूजिंग दैट थिंग। सो मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल साइड से, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बेसिकली समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको डाउट होंगे तो प्लीज पूछना, ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वी हैव चोजन पाइथन। द सेकंड थिंग दैट इज अबाउट डेटा, राइट? सो डेटा के अंदर क्या क्या आने वाला है? माइनिंग, मतलब डेटा को पहले माइन करना है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, कहीं से लेके आना है, फिर डेटा को स्टोर करना है। बहुत सारा डेटा हमने माइन तो कर लिया, निकाल तो लिया, एक्वायर तो कर लिया, लेकिन उसको रखना भी तो पड़ेगा कहीं पे। फिर रखने के टाइम के बाद हमें ये देखना है कि हम स्मार्टली यूज कर रहे हैं कि अपने स्पेस को, दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्शन। so data analysis, right? Data analysis, and that is under extraction, extraction of meaningful data, right? Then
हमारे पास मीनिंगफुल डेटा भी आ गया, अब उसको हम लोगों को मेमोराइज करना है, उसको विजुलाइज करना है। सो डेटा विजुलाइजेशन, डेटा, just a second, right? Data visualization, and डेटा विजुलाइजेशन करने के बाद will be remembering, will be learning the meanings of those data. So, and that is the part of machine learning, right? Machine learning will help us to remember the meaning for a long time, so that if same question that we have memorized, that we have remembered, right, if will be asked in future, then we'll be able to answer that particular thing, right? And then there's a concept called deep learning comes into picture, and deep learning is there for designing the, this is for designing the artificial brain, right? And that is like neural networks, right? And then after that we'll be able to take smart decisions, and that is where the journey ends with the application of artificial intelligence, right? So based on data, will be able to find this particular path, okay? And this path could be analyzed, could be utilized, right, with the help of programming language called Python. Cool. So ये सब चीजें हम लोग करने वाले हैं एक एक करके. तो आज से स्टार्ट करें. कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन है किसी का? Do we also have features engineering in this topic? Yes, definitely, because जब भी हम ML की बात करेंगे तो ML के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं. ML के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, सच लाइक फीचर इंजीनियरिंग उसमें से एक है ना? फीचर इंजीनियरिंग का पर्पस ही ये था कि हम लोग इतने सारे, जैसे मैंने आपको बताया इस पेन के बारे में, तो किसी ने बोला, एक बच्चे ने बोला कि इसका मटेरियल, राइट? सो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं. देयर आर सपोज 10 फीचर्स, बट आउट ऑफ 10 फीचर्स ओनली 5 आउट ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो जो रिमेनिंग 5 हैं उसको हटाने के लिए क्या किया जाए, कौन से मेथड यूज किए जाएं, ये 5 जो इंपॉर्टेंट थे उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनको जानने के लिए, राइट? सो देयर इज अ नीड ऑफ फीचर इंजीनियरिंग, राइट? सो कौन सी एल्गोरिथम्स हैं, कौन से मेथड्स हैं उनको करने के लिए, विल बी एक्चुअली talking about it, we'll be actually discussing about it in ML. So and inside ML we have multiple algorithms. यहाँ पे मशीन लर्निंग के अंदर बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं, एल्गोस, जो हम लोग यूज करेंगे प्रैक्टिकली, उनका मैथमेटिक्स भी और उनके इम्प्लीमेंटेशंस भी, ठीक है? डीप लर्निंग के अंदर भी हम लोग इसकी एल्गो यूज करेंगे, न्यूरल नेटवर्क्स देखेंगे. Yeah, just for a second. So there was ML and DL, okay? And inside this DL, we are talking about designing of artificial brain, which is the neural networks, okay? So ML के अंदर काफी सारी हम लोग अलग अलग तरह की एल्गोरिथम देखने वाले हैं, और इसके अंदर के पार्ट को डिस्कस करने से पहले हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं. So let me know whether how many of you are already aware with the programming language Python. Please write down in the check box
एक बार थोड़ा सा बता दें। Yes, sir, I am. ठीक है, एक बार सब लोग बता दें। Many of you are not aware fully, only the basics. Okay, aware with the basics, right? So not to worry about, हम लोग मैं पूरा तो पाइथन इस पूरे सेशन में नहीं कवर करूंगा, लेकिन बेसिक बहुत सारा कवर कर दूंगा, है ना? तो पूरा, लेकिन मैंने जानबूझ के इस पर्टिकुलर सेशन को अगर मैं लेने वाला हूं तो मैंने काफी सारा पाइथन का पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रखा है, राइट? सो दैट आप उस पूरे बेसिक को, और जितना मैं जैसे बोल रहा हूँ अभी आपको समझा रहा हूँ, एग्जैक्टली इसी इसी फ्लो में सारी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हुए पूरा एंटायर पाइथन हम लोगों ने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दिया, सो दैट बच्चे उससे सीख सकें, है ना? और वो ओपन है। मैं आपको एक बार वो चीज गो थ्रू करा देता हूँ, सो दैट, है ना, आपको इस लेक्चर के बाद में कल जब हम लोग वापस से क्लास में एंटर करेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता हो। आपको केवल 2 3 4 वीडियोस देखनी है, मैं बता दूंगा कौन कौन से देखनी है। आई विल बी गाइडिंग यू बेसिकली क्या हम लोग क्या कितना हम लोगों के लिए जरूरी रहने वाला है, ठीक है? सो आज भी मैं वापस से पाइथन से स्टार्ट करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके? सो लेट मी शेयर दी अनदर स्क्रीन। Yeah, I hope this is visible. I hope this is visible. सो यूट्यूब का एक जो चैनल है उसका लिंक आपको अभी मैंने शेयर किया है चैट बॉक्स में। दिस इज द यूट्यूब चैनल, राइट? द नेम ऑफ दिस चैनल इज LNB कोर, राइट? लर्न एंड बिल्ड कोर itself, okay? It's for core technologies, it's for core content, it's for core knowledge that you should actually gain and build something with that knowledge, right? So here we have got some different playlist ऑल अबाउट लिनक्स। लिनक्स के बारे में सब कुछ, कैसे इंस्टॉल करते हैं, उनकी नेटवर्किंग कैसे होनी चाहिए, जितना एक इंडस्ट्रियल ग्रेड बच्चे को पता होना चाहिए, एक कंपनी में जाने के लिए पता होना चाहिए, वो एंटायरली यहाँ पे पूरी सीरीज पड़ी हुई है ना? मशीन लर्निंग का जो जितना एक स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन है वो सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे डला हुआ है, राइट? इसके अंदर काफी सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी शेयर्ड है। IoT के रिलेटेड पूरा कोर्स इसमें पाइथन के थ्रू कैसे काम करना चाहिए, कैसे पाइथन से रास्पबेरी पाई के थ्रू सेंसर का डेटा ले सकते हैं, कैसे हम लोग गूगल असिस्टेंट को यूज कर सकते हैं ना, काफी सारी चीजें इसमें अंदर वीडियोस में पड़ी हुई हैं। पाइथन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशंस, ये वाला सेक्शन है जो आपको देखना है। AI अटेंडेंस सिस्टम, AI बेस्ड, जिसमें मास्क, अभी अभी कोविड के टाइम का हम लोगों ने एक यूज केस देखा हो तो मास्क इंपॉर्टेंट है। तो एक बंदा अगर जिसने मास्क नहीं पहना हुआ उसको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, राइट? ऑटोमेटिक अटेंडेंस होनी चाहिए मास्क पहनने वाले के साथ में, राइट? प्रॉपर मास्क भी पहना है कि नहीं पहना है, मेल है फीमेल है, उसका उसका नाम क्या, ऑटोमेटिक अटेंडेंस होनी चाहिए विदाउट एनी टच, राइट? सो हाउ वी कैन डू इट in this particular series we have seen, we have actually recorded and shown it too, राइट? कौन कौन से पैरामीटर होंगे आपके पास? QR कोड हो सकता है मोबाइल के अंदर, QR कोड से आपकी पूरी एंटायर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट? कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, नेम क्या है, आपकी यूनिक ID क्या है, इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी मिल जाएंगी आपको, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज, एंड लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द सीरीज, एंड लेट मी शो यू। दिस इज द फर्स्ट वीडियो, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन इंप्लीमेंटेशन के बाद में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं पाइथन में,
डेटा टाइप को कैसे एक्सेस करें, डिक्शनरी क्या होती है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द लर्निंग जो आपने यहाँ तक 3-4 वीडियोस में किया होगा, उसके बाद लूप कैसे यूज करें, कैसे लाइब्रेरीज यूज करें, फंक्शंस कैसे यूज करें, है ना, पाइथन के फंक्शंस क्या होते हैं, लाइब्रेरीज के ओवरव्यूज को, अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज हम लोग को यूज करनी थी, राइट। तो कौन कौन सी लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल है पाइथन के अंदर, कौन सी लाइब्रेरीज हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है, राइट। ऑल दीज लेक्चर्स आर ऑफ 20 to 40 minutes. In between this only you'll be getting the lectures basically. Handling exceptions, है ना, काफी सारे ये ऑलरेडी एक एक टॉपिक सीरियली जो हम लोगों को सीक्वेंस वाइज हमें जानना चाहिए था, वो ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड करके ऑलरेडी डाला हुआ है, सो दैट आपको बार बार ये मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, मुझे बार बार वो चीज सारी एग्जैक्टली डिस्कस करने की जरूरत ना पड़े और आपका टाइम भी खराब ना हो, हम लोग एग्जैक्टली जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके अगले लेक्चर के लिए जो हम लोग कल मिलेंगे, मेरा रिकमेंडेशन है, आप ऑलरेडी बिजी हो सकते हैं, कल वीकेंड है तो 2 दिन जो सैटरडे संडे है वो हम लोग छुट्टी नहीं करने वाले हैं, हम लोगों की क्लास होगी 6 to 8 लेने वाले हैं। मुझे इंटरेस्ट इसलिए लेने में क्योंकि आपके पास टाइम होगा, सो वी कैन एक्चुअली यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर टाइम इन अ प्रॉपर मैनर, ओके। तो अगली क्लास से पहले, यानी कि जो कल की क्लास होने वाली है उससे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मैं कवर करा दूंगा आज, है ना, आपको पाइथन डेटा टाइप्स ये वाली चीजें हो जाएंगी। तो आपको 3rd 4th 5th, राइट, 3rd 4th 5th हो सकता है, अगर आप कर सकते हैं तो फास्ट मोड पे 1.5x पे 1.25x पे बेसिकली आप ये चीज देख सकते हैं। तो 3 4 5 6 7 ये सीरीज आप कवर कर सकते हैं, राइट। ये वर्क कवर कर लेंगे जितने लोगों को अभी बेसिक में या तो पहले जीरो से स्टार्ट करना है पाइथन को, या जिन लोगों का बेसिक क्लियर है, केवल एक बार गो थ्रू कर लें। देन डे आफ्टर टुमारो विल बी टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज कल तक हम लोग यहाँ कवर कर लेंगे, फिर लाइब्रेरीज, फंक्शंस, है ना, उसके बाद कैसे इंस्टॉल करें अलग अलग लाइब्रेरीज को, किस लाइब्रेरी का फायदा हमारे पास होने वाला है, हमारे इस ML AI वाले कोर्स के लिए होने वाला है, ये सब चीजें हम लोग बेसिकली यहाँ से कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा दैट इज फॉर द लाइब्रेरीज और द वीडियोस टिल 15 to 16। यहाँ तक आप वीडियोस देख लेंगे तो आपको पूरा जो एंटायर ओवरव्यू है पूरी पाइथन का मिल जाएगा, जो कि हमारी हेल्प करेगा इस पूरे कोर्स के अंदर, ठीक है। सो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन के बिल्कुल बेसिक से, और यहाँ जो पहला लेक्चर है वो मैं आज खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। और आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट, ये चैनल बहुत नया है, इसमें काफी सारा कंटेंट डल चुका है, काफी सारा रिकॉर्ड हो चुका है, काफी सारा कंटेंट आने वाला है ना। क्यूबरनेटीज, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, डेटा साइंस, काफी इस तरह के जो साइबर सिक्योरिटी, इस तरह का जो कंटेंट है वो बेसिकली इस पे अपलोड होने वाला है ना। काफी रिकॉर्ड हो चुका है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है और एडिटिंग भी चल रही है, तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, सो दैट ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको जो चीज चाहिए आने वाले टाइम के लिए मैं आपको वहां पे सजेस्ट भी कर दूंगा और आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेगी। वन सिंगल सोर्स, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा एंटायर कॉन्सेप्ट LNB का, लर्न एंड बिल्ड का यही है कि आपको जो प्रॉब्लम होती है चैनल पे जाने में, आप एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं एक वीडियोस में एक चैनल पे, उसी का अगला कंटिन्यूएशन कोई बताता नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए, किसी को नहीं पता कौन सी नेक्स्ट वीडियो देखनी है, कहाँ जाना है, किसी को नहीं पता कौन सी वेबसाइट पे जाना है। पहली वेबसाइट से आपने देख लिया, इतने कॉन्सेप्ट देख लिए, 5-10 वीडियोस और ये छोटा सा आपने PDF पढ़ लिया, उनके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो कौन बताएगा कौन सा प्रोजेक्ट बनाया जाए, ये कौन बताएगा, प्रोजेक्ट सही बनाया कि नहीं बनाया उसको इवेल्युएट कौन करेगा। सो नोबडी इज देयर टू गाइड एंड नोबडी इज देयर टू एक्चुअली हेल्प व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। सो पूरा ये LNB कॉन्सेप्ट इसी चीज पे है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर कॉन्सेप्ट। आपको अगर टेक्नोलॉजी सीखनी है, जो हम लोग इस डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो वी शुड फोकस अपॉन कोर लर्निंग ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। इसका जो प्री रिक्विजिट है, जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से पढ़ने के लिए आना चाहिए आपको पहले, चाहे वो आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो आपकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वो सारा कंटेंट हम लोग रिकॉर्ड करके एंटायरली इस चैनल पे डालने वाले हैं, सो दैट आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। यू शुड नॉट roam and confuse yourself while going on different website or content, okay।
So let us go ahead, and why I have explained this particular entire emotion behind this particular channel or behind this concept of LNB, learn and build. Over the time of last in last 8 to 10 years, what we have realized कि ये प्रॉब्लम है सबके साथ में, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं. ऐसा नहीं है केवल आपके साथ में प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है. थैंक यू सैम टू सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, राइट. सो मेरे साथ भी प्रॉब्लम है. अगर मुझे कोई नया कॉन्सेप्ट सीखना होगा या मुझे नई चीज सीखनी है, एग्जांपल के तौर पे मुझे सिंगिंग सीखना है ना, मुझे कोई पियानो सीखना है, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा एक ट्रेनर के पास में. उस ट्रेनर की कैपेबिलिटीज क्या हैं, है ना, वो सही सिखाएगा नहीं सिखाएगा, मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, मुझे अपने शेड्यूल में से बेसिकली टाइम निकाल के जाना पड़ेगा सीखने के लिए. उसका पैशन कितना बनेगा. फिर मुझे सिंगिंग की जगह पे या इस गिटार की जगह पे किसी और चीज को सीखना है, डांस सीखना है, मुझे कोई और ऐसी एक्टिविटी करनी है जो बेसिकली अभी मैं जो कर रहा हूँ उसके अलावा हो. तो हर नई एक्टिविटी में हर एक इंसान को प्रॉब्लम आती है. सो वो जो एंटायर कॉन्सेप्ट है कि आपको कहीं कहीं बार बार अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं. वन सिंगल सोर्स फॉर और एंटायर कोर्स और एंटायर जर्नी और स्टेप बाय स्टेप जर्नी बेसिकली फॉर दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन इज देयर ऑन LNB, लर्न एंड बिल्ड. ओके, सो लेट्स गो अहेड. ये पहला जो लेक्चर है हमारा, है ना, जो मैंने आपको बताया कि इस पाइथन सीरीज के अंदर पहला ये जो डेटा टाइप वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं. तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, हम लोगों को पता है कि प्रोग्रामिंग से पहले हम बात करते हैं जनरल प्रोग्रामिंग की, जनरल लैंग्वेज की. मैं आपसे हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तो अपने सेंटेंस फॉर्म कर रहा हूँ, है ना. इसमें ग्रामर भी है, इसमें वर्ड्स हैं, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच है, इसमें फ्रेजेस हैं, इसमें फुल स्टॉप है, कॉमा भी है, राइट. सो हर वो चीज जो मैं बोल रहा हूँ, भी वोकल कोड्स मेरे आप तक पहुंच रहे हैं. अगर इसकी जगह पे हम लोग अगर इसको इसको लिख के देखें, तो आपको देखने को मिलेगा कि काफी सारे वर्ड्स, फ्रेजेस, है ना, कॉमा, सारी चीजें आपको एक्चुअली अपनी अपनी नरेशन में लिखनी पड़ेगी, राइट. तो हर एक चीज का एक रूल है, हर एक लैंग्वेज का एक रूल है, चाहे वो सी लैंग्वेज क्यों ना हो. अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, सबसे पहले कंप्यूटर से बात करें, है ना. मैं वापस से एक बार अपनी वीडियो को बंद कर देता हूँ, शेयर करना, ठीक है. हाँ, नाउ इट्स कूल. सो एक बार वापस से चलते हैं अपनी जर्नी पे, जहां पे हम लोगों को कंप्यूटर के बारे में पता है. दिस इज योर कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर काम कर रहा है आपके डिजिटल लॉजिक्स पे, 0 और 1 पे. वो 0 और 1 पे क्यों काम कर रहा है? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो भी चिप लगी हुई हैं, है ना, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पूरा इस पूरी इंडस्ट्री का हार्डवेयर साइड से भी बहुत ज्यादा है. मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया है, प्रोडक्ट पे काम किया है, अलग अलग कंपनीज के साथ में काम किया है. तो पूरी एंटायर एक चिप के अंदर चिप बनती कैसे है, बनाई कैसे जाती है, क्या मैं बना सकता हूँ. आई हैव डिजाइन कपल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट फॉर चिप्स एज वेल, राइट. सो उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ओके, सो एक चिप के अंदर ट्रांजिस्टर्स रहते हैं, है ना, मॉसफेट रहते हैं. तो वो ट्रांजिस्टर मॉसफेट बेसिकली अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं. वो एनर्जी क्या हो सकती है डिजिटल में, या तो 5 वोल्ट या 0 वोल्ट. जो भी लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए इंपॉर्टेंट है ना. वोल्टेज और करंट हम लोगों ने सुना हुआ है. 5 वोल्ट और 0 वोल्ट का जो स्टेटस है वो एनर्जी स्टोर करके रखता है ट्रांजिस्टर. तो ट्रांजिस्टर के अंदर 3 लेग हैं, है ना. अब आप बात करोगे तीनों लेग्स की, तो तीनों लेग में आप देखोगे कि कलेक्टर पे क्या मिलेगा, या बेस पे क्या मिलेगा, या एमीटर पे क्या मिलेगा, क्या स्टेटस है कलेक्टर का भी, हाई है या लो है, 5 वोल्ट है या 0 वोल्ट है. तो उस बेसिस पे बेसिकली एंटायर जो बहुत बड़ा एरे बनता है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर मिला के एक नेटवर्क बनाते हैं. तो हर ट्रांजिस्टर का एनर्जी का स्टेटस क्या है, उसके बेसिस पे ये पूरी कैलकुलेशन चलती है जो मैं आपको बोल रहा हूँ. ये कंप्यूटर जिस पे काम कर रहा है, तो जो भी कंप्यूटर डिसीजन लेने वाला है वो डिजिटल लॉजिक्स पे लेने वाला है, जीरोस और वंस, जीरोस और वंस. जीरो मतलब हमने बोल दिया लोअर लेवल ऑफ वोल्टेज विच मीन्स अराउंड 0 वोल्ट, एंड 1 मीन्स हायर एट इज 5 वोल्ट. ओके, तो 0 और 1 की पूरी लैंग्वेज को हमने बोल दिया मशीन लेवल लैंग्वेज. मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस और वंस को मिला के हमने मशीन लेवल लैंग्वेज बोल दिया. मशीन लेवल लैंग्वेज में मुझे पहले मिलियंस ऑफ जीरोस और वंस का कॉम्बिनेशन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं जिनके पास ही इंफॉर्मेशन जाएगी. तो कुछ लोगों ने, कुछ प्रोग्रामर्स ने बहुत हार्ड वर्क करके अर्ली 90s में,
क्योंकि 70s में हमारे पास चिप आ गई थी प्रोग्रामेबल, राइट, माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स। सो अर्ली 90s में वो सारी लाइब्रेरीज बना दी, वो मेथड बना दिए जिसके थ्रू वो जो हम लोगों को वो 0 1 याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपना प्रोग्राम इंग्लिश में लिखें, अपनी जो लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश हो, लेकिन कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वो जो लाइब्रेरीज हैं, वो मेथड थे, वो कन्वर्टेबल थे ह्यूमन लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, और उसको हमने बोल दिया था कंपाइलर या इंटरप्रेटर, एक बीच का ऐसा मीडियम जो हमारी लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर सकता था, राइट। एंड लेट अस मूव अहेड। हमारे पास फिर लैंग्वेज आई असेंबली, और असेंबली लैंग्वेज भी बहुत टफ है। हर एक छोटे काम करने के लिए हमें एक कीवर्ड मिलता था, तो हमारे पास कम से कम लाखों कीवर्ड हो गए, वो सारे कीवर्ड हर प्रोग्रामर को याद होने चाहिए, नहीं हो सकते। सो फिर क्या कॉन्सेप्ट आया, एक नया कॉन्सेप्ट आया असेंबली के बाद में कि ठीक है, काम करते हैं, हम लॉजिकल एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, दैट इज एक्चुअली नथिंग बट अ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज के अंदर का पैटर्न हो गया कि आपको ऐसे 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 चीजों को लिखना है। हिंदी लिखते हो या इंग्लिश लिखते हो तो राइट साइड से लिखते हो, उर्दू लिखते हो तो बैक साइड से लिखते हो, है ना। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बन गया सी लैंग्वेज के लिए। तो सी लैंग्वेज में आप जो भी प्रोग्राम लिखोगे वो इंग्लिश में है, कीवर्ड्स इंग्लिश में है, कॉन्सेप्ट्स आपके इंग्लिश में है, आप लिखते हो, उसका एक मेथड है लेकिन, हाँ उसकी स्ट्रक्चर है लेकिन, हाँ, है ना। तो आपने कुछ भी लिखा, उसको कंपाइलर ने कन्वर्ट कर दिया, कंपाइलर ने जो कन्वर्ट किया उसके बाद ऑब्जेक्ट फाइल बनी, ऑब्जेक्ट फाइल बनने के बाद में लिंकर ने इसको 0 1 में कन्वर्ट कर दिया, वो हार्डवेयर में चला गया और हार्डवेयर ने उसको प्रोसेस कर दिया, क्योंकि हार्डवेयर को तो 0 1 समझ में आता है, राइट। सो लेट अस गो अहेड। सी लैंग्वेज बहुत टफ है क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर के कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको बहुत बहुत ज्यादा डीप में जाके हमें समझना पड़ेगा। नाउ वी हैव गॉट अनदर कंसेप्ट कॉल्ड पाइथन, है ना। इसके बीच में भी बहुत सारी जर्नी है, तो हम लोग पाइथन पे आ जाते हैं। तो आपकी पूरी एंटायर पाइथन की जर्नी में वी हैव अंडरस्टूड वन थिंग, कि अगर आपको कोई भी डेटा को मैनेज करना पड़ेगा, कोई भी डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा, तो आपको ये जानना जरूरी है कि वो डेटा का टाइप क्या है। मैं जो बोल रहा हूं, इसमें जो वर्ड्स हैं ये स्ट्रिंग हैं, ये जो सेंटेंस है पूरा स्ट्रिंग है। लेकिन मैं अगर नंबर की बात करूं, मैं बात करूंगा, सपोज मैंने बोला योर मार्क्स आउट ऑफ 100 वुड शुड बी एटलीस्ट 60%, है ना। तो हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट देने वाला हूँ, ओवर एन पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट इन वीक। अगर मैं आपका असाइनमेंट लेता हूँ, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, है ना, मैं आपको दूं कि ये वाले टास्क हैं, ये आपको कंप्लीट करनी है, बेस्ड ऑन विच एक्चुअली आई विल बी मेंटेनिंग योर रिकॉर्ड आल्सो, and at the end of the session also I'll be giving you the assignment, practically a kind of project, right। अगर वो प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करते हैं, then you'll be getting a project certification entirely for that particular great activity। तो इस पूरी चीज के लिए आप सोचिए कि आपको डेटा के ऊपर काम करना है, उस डेटा का आपको टाइप जानना जरूरी है ना। दिस नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका टाइप क्या रहने वाला है, ये बहुत नेसेसरी है, क्योंकि उसी के ऊपर कैलकुलेशन होंगी। अब आप सोचिए कि मैंने बोला सौरभ, राइट, मैंने बोला गुड, ऐसे अलग अलग वर्ड अगर मैं टेक्स्ट में बोल रहा हूं, तो क्या ये वर्ड्स के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। हम लोग टेक्स्ट के ऊपर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कैलकुलेशन केवल नंबर पे हो पाएगी। तो कोई भी एंटायर, इस पूरी जो एआई की जर्नी है, इस पूरी एंटायर एआई जर्नी में जो भी कैलकुलेशन होंगी, वो केवल और केवल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन नंबर्स पे हो सकती है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों ना हो, आयोटास क्यों ना हो, है ना। साइंटिफिक क्या नाम है, व्हाट आर आयोटास? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं सैम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसमें हम लोग जो रियल कैलकुलेशंस हैं, आपने देखा कि हम लोगों को 0 to 9 मिल गया, 0 1 2 3 4 5। अब 0 to 9 से हमें काम ही नहीं चला, नया कुछ इन्वेंशन करना था, तो हम लोगों के पास एक नई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ गई जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई। मैंने बोला कि आप जा रहे हो 10 meters इन ईस्ट, you are going in west, basically you are going in east and west, middle west, right। so अगर आपको directions include करनी है, तो complex numbers are actually helpful for you, understood। ठीक है, Yes तो कैसे sir. और थोड़ा सा हम लोग इसको और डीप में जब कैलकुलेट करेंगे डेटा को, तो डेटा की रेस्पेक्ट में बेसिकली कैलकुलेशन के टाइम पे और अच्छे से जान पाएंगे। अभी के लिए मान लेते हैं कि डेटा हमारा अलग अलग तरह का टाइप का होने वाला है, तो जितने भी टाइप के आपके पास डेटा हैं, पाइथन will be capable of working with all those data types, and you need not to figure out different languages to work on those data, one single language for all the data types। तो पाइथन ने क्या बोला, जितनी भी कैटेगरीज हैं डेटा की,
उसमें 3 तरह की कैटेगरी इसने मोस्ट प्रोबेबली हाईलाइट की। पहला उसने बताया कि पहली चीज हो सकती है न्यूमेरिक, दूसरी हो सकती है टेक्स्ट, तीसरी हो सकती है साउंड, साउंड है ना, चौथी हो सकती है इमेज। बट किसी भी तरह के मेथड को, किसी भी तरह के कैटेगरी को आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आपको उस कैटेगरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर्स में। यानी कि एक इमेज है तो उस इमेज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले नंबर्स में। कैसे कन्वर्ट करोगे इमेज को नंबर्स में? एक इमेज में तो एक कैट दिख रही है, डॉग दिख रहा है, तो उस कैट और डॉग दिखने वाली इमेज को कैसे नंबर में कन्वर्ट करोगे? इस इमेज का मीनिंग 30, उस वाली इमेज का मीनिंग 35, इस मीनिंग का इस इमेज का मीनिंग 37.5। ऐसे ही नंबर्स कहाँ से आएंगे? ऐसे तो मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं ना। मैंने कोई कॉन्वर्सेशन किया आपके साथ 2 घंटे का, इस 2 घंटे के कॉन्वर्सेशन के करने के बाद में सपोज लास्ट में आपको पूरे कन्वर्सेशन को अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों के लिए रेट करना है, नंबर बनाने हैं उसके, कैसे बनाओगे आप? So calculation are only possible on numbers, either on your real numbers or complex numbers also. But the main important thing is whatever type of data that you could have that, right? Either your voice, either your image, either your text, वो सारा डेटा हमारे लिए डेटा साइंस में और इस एआई जर्नी में इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा कैसे होता है ये हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। आज के लिए इतना जान लेते हैं कि पाइथन ने 5 ऐसे डेटा टाइप बताए जो कि पाइथन कहता है कि ये आपस में डिस्टिंग्विशेबल हैं, अलग अलग हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जैक्टली समबडी हैज सेड मिलिंद, यस पिक्सेल्स, एंड पिक्सेल्स आर नथिंग बट हैव स्पेसिफिक वैल्यूज। सो अगेन इमेज को हम लोग पिक्सल की कैलकुलेशन के बेसिस पे न्यूमेरिक डिजिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या न्यूमेरिक बेसिकली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वैसे ही टेक्स्ट के साथ में भी ऐसा होगा और वॉइस के साथ में भी ऐसा होगा। ठीक है, वॉइस को भी हम लोग एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल्स और कुछ एम्पलीट्यूड मॉड्यूल्स के साथ में या एम्पलीट्यूड कैलकुलेशंस के साथ में नंबर्स में न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? सो लेट अस गो बैक and come back with the topic of data type. Okay, so Python के अंदर let me share my screen once again. Is that visible now? Which screen is visible, by the way? Yeah, so this programming language Python, this screen is visible, right? Let me check that. Yeah, okay. So Python has told that they have data types and 5 important data types are there, right? कौन कौन से डेटा टाइप्स वो वाले? पहला इन्होंने बोला कि जो भी आप अल्फा न्यूमेरिक की बात करते हो, अल्फा न्यूमेरिक में कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं या नंबर्स हो सकते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक को 2 पार्ट में बोल दिया, ब्रेक कर दिया। वन इज फॉर अल्फाबेट्स एंड सेकेंड इज फॉर नंबर्स, राइट? सो जो भी नंबर होगा, चाहे वो फ्लोट में हो यानी कि 10.5 हो, 10.5, एक कोई इंटीजर, ऑल दीज आर नंबर्स, राइट? तो आप इसको नंबर्स बोल सकते हो, राइट? The first category of data type. Second category of data type is string. String, right? So string के अंदर सिंगल कैरेक्टर हो, A, या कोई एक सेंटेंस हो, हेलो, हाउ आर यू, या कोई एक सिंगल वर्ड हो, राइट? कोई एक सिंगल वर्ड हो डबल कोड्स के अंदर, सौरभ, और ट्रिपल कोड्स के अंदर, LNB, राइट? अगर आपको कुछ भी यहां देखने को मिलता है सिंगल कोड में, डबल कोड में या ट्रिपल कोड्स में, अगर इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे वो सिंगल लेटर हो या कोई एक पर्टिकुलर स्टोरी हो या कोई वर्ड हो, इस सबको हम लोग बोलने वाले हैं टेक्निकल लैंग्वेज में स्ट्रिंग, पाइथन के केस में, राइट? कोई भी नंबर हो, चाहे वो माइनस हो, पॉजिटिव हो,
या कॉम्प्लेक्स हो, राइट, कोई फ्लोटिंग हो, कोई लॉन्ग नंबर हो, बहुत बड़ा नंबर, सपोज 1 billion trillion, something like that, right? Something like this. For any specific length, for any specific value, would be always a number. Doesn't matter it is 16-bit or 32-bit or 24-bit or any specific length, then it will always be a number. Okay, so there are two different categories. Now let's talk about the third category. अगर हम लोगों ने नंबर्स को और स्ट्रिंग को दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया, तो एक नया डेटा टाइप बनाया इन्होंने, इसको बोल दिया ट्यूपल, ट्यूपल और टपल। इसको बोला कि आप एक काम करो, एक ब्रैकेट के अंदर इस पूरे डेटा को एक साथ मैनेज कर लो। हाँ, इस पूरे डेटा को एक साथ मैनेज कर लो। कैसे मैनेज करेंगे? कैसे मैनेज करेंगे? इसके अंदर आप अपना कोई भी नंबर लिख सकते हो एक साथ, इसके अंदर कोई स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, चाहे वो डबल कोट्स में हो चाहे वो सिंगल कोट्स में हो, राइट? तो मैंने क्या लिखा देखो, डबल कोट्स भी यूज किए, सिंगल कोट भी यूज किए, लेकिन एक चीज नोटिस करना आप लोग कि मैंने सिंगल कोट से स्टार्ट किया तो सिंगल कोट पे एंड किया, डबल कोट से स्टार्ट किया तो डबल कोट पे एंड किया। ऐसा नहीं किया कि वन सिंगल कोट टू स्टार्ट विद एंड डबल कोट्स टू एंड विद, राइट? नंबर्स हैं तो विदाउट कोट्स हैं। अच्छा, क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? मैंने लिखा हेलो 1 2 3, so hello 1 2 3 has become a alphanumeric combination which is a string now. इसको हम इसको एक नंबर नहीं बोल सकते, इसको हम लोग एक स्ट्रिंग की कैटेगरी में रखेंगे। अगर कोई भी ऐसी चीज जो कि दोनों की कॉम्बिनेशन से बन रही है, 0.5 भी, ऐसा भी कुछ, तो सब चीजें किसमें आएंगी? स्ट्रिंग की कैटेगरी में। इसका मतलब है अगर स्ट्रिंग एंड नंबर्स, इन सबको अगर हम लोगों ने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, these small brackets, right, then small bracket के अंदर separated with commas, if there is a combination of numbers and string together is called as tuple, right? So बहुत simple है ये, collection of number and string together inside this particular bracket separated with comma is called as number, right? तो एक प्रॉब्लम आई टपल के साथ में, एक नया कॉन्सेप्ट आया है ना, और उसको बोला लिस्ट। तो लिस्ट और टपल में एक छोटा सा डिफरेंस बनाया, एक यूज केस बनाया, एक यूज केस बनाया कि ऐसा हो सकता है, जस्ट अ सेकेंड, है ना, एक यूज केस बनाया कि आपको अगर पूरे डेटा को हमेशा सेम रखना है, हमेशा सेम रखना है, you need this data to be exactly same, like when do you need it? अगर आपके पासवर्ड्स हैं, आपके पासवर्ड्स हैं या यूजर की इंफॉर्मेशन है, आज यूजर की इंफॉर्मेशन 3 चीजों के लिए है, कल वो इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होने वाली है, ओनली 3 ही इंफॉर्मेशन, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये 3 चाहिए हम लोगों को, चौथी चीजें नहीं चाहिए, फोर्थ पैरामीटर नहीं चाहिए, राइट? सो what you will do, you will make this entire data fixed, you will make this entire data fixed, ये चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि डेटा चेंज नहीं होना चाहिए, then this is called as tuple, and this is called as and why it is important to secure your data, right? You don't need any sort of changes in future, आपको इसके बाद कोई नया डेटा ऐड नहीं करना है, राइट? आपको केवल 5 ही एंट्री रखनी है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेबिलिटी, राइट? सो दिस इज इम्यूटेबल, इट्स नॉट गोना बी चेंज इन फ्यूचर, you cannot change any single entry also, this is not going to be changed, once you have fixed it, this is fixed, okay? But if you want to change it, if you want to update it in future, today suppose there was a home, right, एक address था 262 Muktanand Nagar, this is something like that, so this address, right, was fixed for one particular person for today,
But after 5 years, maybe some new people will be coming up in this home or at this address. So they would require their own details instead of the old details earlier. So you would be needing to change some specific information inside this particular database. So if it is a database of collection of alphanumeric data, जहाँ पे numbers भी हैं, string भी है, तो बस उन्होंने क्या बोला, एक काम करो, इसको ना स्मॉल ब्रैकेट की जगह पे कैपिटल ब्रैकेट कर दो. तो ये जब कैपिटल ब्रैकेट करोगे तो पाइथन समझ लेगा, पाइथन समझ जाएगा कि ये किस तरह का डेटा है. कैसा डेटा है? ये लिस्ट है, और लिस्ट है तो ये अपडेट हो सकती है. तो पाइथन क्या समझता है? पाइथन समझता है नोटेशन से. अगर कोई भी नोटेशन नहीं है तो नंबर होगा, कोई भी नोटेशन नहीं है तो नंबर होगा. सिंगल कोड्स हैं, डबल कोड्स हैं, ट्रिपल कोड्स हैं, तो पाइथन समझेगा उसको स्ट्रिंग है. अगर आपके स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बंद किया है और कलेक्शन है, सेपरेटेड विद कॉमास हैं, तो उसको वो टपल ट्रीट करेगा. टपल ट्रीट करने का मतलब है ये इम्यूटेबिलिटी है, चेंज नहीं होने वाली है. लिस्ट मतलब कि कैपिटल ब्रैकेट होना चाहिए, कलेक्शन सेम है, कलेक्शन सेम है, राइट, बट ये अपडेट हो सकता है, ये म्यूटेबल है. और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब नंबर, स्ट्रिंग. अगर आपको ऐसा लगता है कि नंबर्स और स्ट्रिंग इन सब चीजों को मिला के आपका एक कोई ग्रुप बन रहा है डेटा का, तो इसको बोलते हैं हम लोग, एक वर्ड है होमोजेनिटी, राइट, होमोजीनियस डेटा, राइट. सो दिस इज हेट्रोजीनियस डेटा. होमोजीनियस मतलब एक ही तरह का डेटा, दैट इज नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स. एंड टपल एंड लिस्ट आर heterogeneous data. So one single line to define both the category of data types. The first is, the line is heterogeneous data collection which is immutable is called as tuple. Heterogeneous data collection which is mutable is called as list, right? Collection of couple of characters or sentence together and separated with or aligned with double brackets, single quotes, or triple quotes is called as string. Without any quotes, without any notation, specific numbers if would be written will be called as numbers, right? ये चार तरह के डेटा टाइप हो गए. इसके बाद एक और बनाया, फिफ्थ, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिक्शनरी. दैट इज डिक्शनरी. ये क्या चीज हुई? इन्होंने इसको और नोटिफाई किया डिफरेंट तरीके से. इसको बोला कि ये ब्रैकेट आप चेंज करो. पाइथन को नहीं तो पता नहीं चल पाएगा. पाइथन को कैसे पता चलता है? इस ब्रैकेट से. पाइथन को इस ब्रैकेट से पता चलता है. पाइथन को बताने के लिए कि ये अब लिस्ट नहीं है, टपल नहीं है, ये एक डिक्शनरी है. तो इसके लिए हम लोगों के पास एक और चीज आ गई, करली ब्रेसेस, राइट. सो करली ब्रेसेस कैसे हेल्प करेगी हम लोगों को? जस्ट गिव मी अ सेकंड. सो डिक्शनरी के अंदर एक और नई चीज आ गई. डिक्शनरी के अंदर हम लोगों ने बोला कि भाई हम एक मीनिंग रखना चाहते हैं. मीनिंग रखना चाहते हैं कि के मतलब होना चाहिए की. जब भी के की बात होगी की बोलेंगे हम इसको. जब भी एस की बात होगी तब हम सौरभ बोलेंगे इसको. जब भी हम एल की बात करेंगे या एल एन बी की बात करेंगे, और लंबा कर देते हैं इसको, तब ये लर्न एंड बिल्ड की बात होगी, राइट. जैसे ही हम लोग 1 की बात करेंगे, 1 का मतलब 1000 होगा. 2 की बात करेंगे, 2 का मतलब मे बी 2000 होगा, राइट. सपोज 1.5 की बात करेंगे तो इसका मतलब सपोज जयपुर होगा. तो क्या किया हमने, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कीवर्ड को हमने कोई मीनिंग दे दिया. इस कीवर्ड का मीनिंग ये होगा, इस कीवर्ड का मीनिंग ये होगा, इस कीवर्ड का मीनिंग ये होगा. तो इससे फायदा क्या हुआ, जब भी हम लोग ये की के बारे में बात करेंगे या कीवर्ड के बारे में बात करेंगे, हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये कीवर्ड इतने सारा डेटा जो है, जो भी आपको 4-5 चीजें दिख रही हैं, इसकी जगह पे ये 1 मिलियन भी हुआ, बहुत बड़ा कलेक्शन हुआ, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम केवल एक कीवर्ड को हम लोग कॉल करेंगे और इस पूरे एंटायर डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, राइट. सो ये कीवर्ड है, जैसे हमारी डिक्शनरी में होता है, फिजिकल डिक्शनरी में होता है.
Can we write numbers with double or single quotes also? No. If double quotes or single quotes are used, then it is for string and it will be called as string always. Okay, number will be always without any quotes, without any notations. Without any notations, everything will be a number only, right? So डिक्शनरी कब हेल्प करने वाली है? जब हमारा डेटा बहुत बड़ा होगा. अभी तो आपको क्या लग रहा है कि टपल, लिस्ट, इसके अंदर 5 चीजें पड़ी हैं जो सामने दिख रही हैं, 10, 23, hello, wow, hello 1, 2, 3.5, right? It's very easy to see it and visualize it properly. But what if there are millions of values where there'll be text, where there'll be numbers and lots of different informations? So आपको पता ही नहीं चल पाएगा. You cannot analyze it. For that to remember, this dictionary is very good, right? Just आप k के बारे में बात करो तो की ऑटोमेटिकली जो भी इसके अंदर होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा होगा, राइट? सो ये हमारे पास 5 ऐसी कीवर्ड्स हैं या 5 ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो पाइथन के अंदर बहुत पावरफुल हैं. और इस टॉपिक को जो हमने डिस्कस किया, इसको क्या बोलते हैं? पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर. पाइथन डेटा स्ट्रक्चर. आप सोचेंगे कि यार पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया हम लोगों ने, तो डेटा ऐसे है, डाटा ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है पाइथन के अंदर. पाइथन का ये डेटा टाइप फॉर्मेट है. अगर आपको ये समझ में आता है तो आने वाले टाइम में जब भी हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी के डेटा की बात करेंगे तो उसको कैसे भी करके इन 5 फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. अगर 5 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, एक आपके पास एक्सेल शीट है, एक आपके पास वेबसाइट से आने वाला बहुत अलग अलग तरह का डेटा, एक इमेज आ रही है, जस्ट टेक एन एग्जांपल फॉर फेसबुक. फेसबुक पे अगर आप पोस्ट करते हो तो एक स्माइली सेट करते हो, फीलिंग समथिंग, है ना, दैट स्टेटस आल्सो you actually set on that particular post, and then you are typing something, you are actually writing some numbers, you are actually writing some text, फिर उसके बाद एक इमेज भी लगा रहे हो, राइट? सो आप इतना सारा अलग अलग तरह का वैरायटी ऑफ डेटा फेसबुक पे अपलोड करने वाले हो. इस सारे डेटा को फेसबुक कैसे देखेगा? फेसबुक की वेबसाइट कैसे देखेगी? सर्वर कैसे देखेगा? वो उसको नहीं पता आपके पास इमेज आ रही है क्या आ रही है, उसको नहीं पता आपने क्या फीलिंग सेलेक्ट किया हुआ है. इन सारी एक्टिविटी को कैसे भी करके अगर उसका फेसबुक इस पाइथन पे बना होता तो पाइथन कैसे देखती उसको? हर डेटा को पहले नंबर, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट और डिक्शनरी में कन्वर्ट करेगी. जैसे कि कंप्यूटर हमारा किसी भी डेटा को 0, 1 में कन्वर्ट करेगा. आप चाहे किसी भी फॉर्मेट में डेटा देना चाहते हो, चाहे वो स्पीच में हो, चाहे वो इमेज में हो, चाहे वो वीडियो में हो, चाहे वो किसी फाइल फॉर्मेट में हो, पीडीएफ फाइल है, कोई एक्सेल शीट्स है, राइट? सो एवरी सिंगल फॉर्मेट ऑफ डेटा शुड बी कन्वर्टेड इन दिस फाइल फॉर्मेट, 5 data types. Okay, and this is one of the good point to understand, one of the best point to understand. So anyhow, our intention would be to convert our data into these 5 data types. Okay, तो इन डेटा टाइप्स को अंडरस्टैंड करने से पहले एक बार ये देखते हैं कि हम लोग ये चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कहाँ कर सकते हैं, है ना? ये प्रैक्टिकली कहाँ देखने को मिल सकती है, इनका डिफरेंस जो मैंने आपको बोला, ये म्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है, ये सब देखने को कैसे मिल सकता है, क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है, राइट? सो ये चीजें हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं. उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग जो प्लेटफॉर्म यूज करने वाले, जहाँ ये प्रोग्राम लिखे जाएंगे, वो प्लेटफॉर्म क्या होगा. मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो मैं बोल रहा हूँ केवल उसी चीज को कुछ स्टार्टिंग के डेज में यूज करें. नहीं तो अगर आप अलग अलग तरह के मेथड यूज करेंगे, मुझे लगता है श्योरली थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इंस्टॉलेशन में भी हो सकती है और इम्प्लीमेंटेशन में भी हो सकती है. तो स्टार्टिंग की कम से कम 1 वीक तक प्लीज फॉलो मी, follow the instructions related to the installation, related to the methods of process, जो भी मैं बताने वाला हूँ. मुझे लगता है उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस होगा पूरे एंटायर इस जर्नी में उस मैकेनिज्म से जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं. शुड वी गो अहेड नाउ? इज दैट ओके? Yeah, so let me share the another screen now. Yeah, so everybody of you just go on python.org, python.org. अच्छा, मैं एक और अच्छी चीज बताता हूँ आपको. मेरी इस लेक्चर के बाद में केवल आप आधा घंटा देना, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देखना और आधा घंटा देना.
आधे से 1 घंटा मैक्सिमम इसका पूरा रिवीजन आपकी पूरी मशीन लर्निंग की इस पूरी एक्टिविटी को सफल बना देगा। आपको बार बार इस कोर्स को कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके छोटे छोटे नोट्स मिल जाएंगे आपको, बन जाएंगे आपके पास। केवल आपको आधे से 1 घंटा डेली देना है, जब आपको टाइम मिले, बिफोर द क्लास, आफ्टर द क्लास, जब भी आपको सही लगता है। रात को लगता है कि अभी 9 बजे 8 बजे हम लोग खत्म करेंगे, 9 बजे बैठ के हम लोग आधा घंटा 1 घंटा इस पर रिवाइज कर सकते हैं। प्लीज डू। रिकॉर्डिंग आपको मैं इमीडिएटली विद इन एन आवर भेज दूंगा, बिफोर 10 भेज दूंगा रात को। एंड जैसे आपको मिले, प्लीज उसकी आप सारी चीजों को एक बार गो थ्रू कर लें, और जितनी भी चीजें उसमें इंप्लीमेंट की हैं वो सारी इंप्लीमेंट करते चलें। हो सकता है कि अभी मैं फास्ट चल रहा हूँ, ये वन वे हो रहा है ना, मैं क्योंकि आपके सिस्टम को नहीं देख सकता अभी, बट जितनी मैं चीजें बता रहा हूँ प्लीज एंटायरली एग्जैक्टली वैसा करना, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। कहीं आती है तो नोट डाउन कर लेना, अगली क्लास से पहले हम लोग पूछ लेंगे, बात कर लेंगे। मुझे आपको किसी भी टाइम पे कोई भी आंसर करने में प्रॉब्लम नहीं है। वो जो ग्रुप बनाया हुआ है, आप वहां पे अपने क्वेश्चंस डालें। किसी को अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आता है, किसी को पहले से पता है, तो वो आंसर दे दे। इससे आपके क्वेश्चन आंसर, आपकी नॉलेज वहां भी टेस्ट होगी। आपको आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लस मैं किसी भी टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ उस पूरे ग्रुप पे, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए, राइट। सो वी हैव गॉन ऑन पाइथन ऑन python.org, राइट। ये पाइथन का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, जहां से आप पाइथन के आईडीज को डाउनलोड कर सकते हो। ये अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, पीएसएफ, डॉक्यूमेंट्स, पाईपाई, जॉब्स, जो पाइथन की तरफ से ही, कम्युनिटी की तरफ से ही लिस्टेड है। यू कैन गो ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड चेक आउट मेनी डिटेल्स अबाउट इट। ओके, सो लेट्स गो ऑन डाउनलोड, है ना, python.org। जो भी आपकी वेबसाइट ओपन होके आती है, लेट्स क्लिक ऑन दिस डाउनलोड ऑप्शन। ओके, डोंट क्लिक ऑन पाइथन 3.9.1, प्लीज डोंट क्लिक। इसको इंस्टॉल नहीं करना है ना, ये बहुत लेटेस्ट है। इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है कुछ प्रोग्राम चलाने के लिए एआई और मशीन लर्निंग में। सो प्लीज डोंट यूज इट, just try to click on download. I have clicked it already. Just go on this list, right? Active Python release 3.9, 3.8, 3.7, 3.6। हम लोगों को 3.6 के किसी पर्टिकुलर वर्जन को इंस्टॉल करना है। रीजन अबाउट इट, आप पूछेंगे क्यों करना है, यही क्यों चाहिए। जो लेटेस्ट वर्जन है उसके साथ में लाइब्रेरीज उतनी फास्ट अपडेट नहीं होती है, तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसी लाइब्रेरीज जो हम लोगों को लेटेस्ट प्रोजेक्ट हेल्प इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करने वाली है, वो उन वर्जन्स में नहीं मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है, आप 3.6 का कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर लें। 3.6.9, 3.6.7, 3.6.6, 3.6.5, 3.6.4 से ऊपर, या इवन इनफैक्ट 3.6.3, इससे ऊपर कोई भी वर्जन आपका लगे, 3.6.3 टू 3.6 पॉइंट समथिंग, राइट, जो लेटेस्ट वर्जन है 3.6 का, 3.6.11, इस बीच में कोई भी इंस्टॉल कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या करना है, जस्ट सपोज आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन 3.6.5, सपोज ऑन दिस। ओके, क्लिक करते ही इतना इतना बड़ा डॉक्यूमेंट इसका ओपन होके आता है, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है कि Python 3.6.5 was the fifth maintenance release on this thing. Notes about why they have released it, what kind of facility they have given and implemented in this next version, right? But if you'll go down here, they have shown couple of files here. तो Mac OS के लिए कर रहे हैं, Windows के लिए कर रहे हैं, कि लिनक्स के लिए कर रहे हैं। तो लिनक्स का मेथड कुछ और अलग रहेगा, बट मैक और विंडोज के लिए आप यहाँ से कर सकते हो, राइट। जिसके पास लिनक्स है, जो लिनक्स से ऑपरेट करने वाला है। एक और चीज बता देता हूँ मैं, जब ये मशीन लर्निंग स्टार्ट हुई थी, तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज द फेवरेट वन, राइट। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बहुत ज्यादा फास्ट डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन पिछले 2 सालों में, 2018 टू 2021, the current environment that they have set it for Windows and Mac OS is fabulous. So आपको कोई भी एप्लीकेशन जो भी हम लोगों को डिजाइन करनी है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ना तो विंडोज में, ना ही मैक ओएस में, ना ही लिनक्स में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक बार आपने प्रोग्राम बनाया, कहीं पे भी बनाया, वो तीनों चारों प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला है, राइट। तो आपको अगर विंडोज आप यूज कर रहे हैं तो आप चेक करें,
अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे चेक करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक बार वापस से शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। तो यहाँ आपके पास माई कंप्यूटर है, राइट, दिस पीसी विंडोज 10 हो सकता है, विंडोज 8 हो सकता है, विंडोज 7 हो सकता है ना। अगर बहुत पुराना कंप्यूटर होगा तो 7 पहुंचेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा विंडोज 10 तो आपके पास हो, राइट। सो ये बेसिकली मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने क्या किया, दिस पीसी पे राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज में गया। मैं वापस से दिखा देता हूँ, दिस पीसी प्रॉपर्टीज, राइट। इसमें आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64, राइट। x64 का मतलब है, रैम को मत देखना अभी, राइट। सो लेट मी शेयर द अनदर स्क्रीन वंस अगेन, या सो हियर x86 64, x86 86 का मतलब है 32 बिट, x86 इन 64 बिट का मतलब है जो हम लोग अभी कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे 64 बिट वाला, ठीक है ना। तो आपको अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप क्या करेंगे, विंडोज x86 64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर इंस्टॉल करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका एक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, राइट। हियर यू हैव गॉट डाउनलोड, राइट। नाउ इफ यू विल गो ऑन दिस फाइल, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ वापस से। इफ यू विल गो ऑन दिस फाइल, डबल क्लिक ऑन दिस, right, and then there'll be an option, there'll be an option for add path to 3.6 point something. Let me show you in another window. Let me show you in this window. Yeah, so what I have done, I have gone to this python.org. Right, I've clicked on download. Here if you will scroll this list, you will see a lot of options over here, and I would recommend any option, any specific version of 3.6. Suppose I have clicked on 3.6.5, it will redirect this page to this next page of 3.6 where every single detail will be mentioned. And सर अगर हमारे पास पहले से ही मतलब पाइथन इंस्टॉल्ड है और वो 3.8 है तो सर उसको हम डिलीट करके 3.6 डाउनलोड करें क्या? प्लीज उसको, अगर आपके पास कोई लेटेस्ट मतलब वर्जन पाइथन का है तो प्लीज उसको अनइंस्टॉल कर दें, राइट। उसके सारे जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको डिलीट कर दें, आपके प्रोग्राम्स को आप सेव कर लेना पहले कहीं और किसी पेन ड्राइव में या किसी और हार्ड ड्राइव मतलब सॉरी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल कर लेना और उसको पूरे फोल्डर को डिलीट कर देना, सो दैट उसकी डिपेंडेंसीज इस पर्टिकुलर So Hello? Hello? hello.
Yeah, I was disconnected. Now it's okay, I guess. So let me share the screen once सर again. आप कुछ बोल रहे थे कि है ना, मतलब अगर आप डिलीट कर दो. Right. So so this was the file, right? If I'll click on this, the size of this file of Python it will take hardly few seconds to just download and few seconds to install. Let me tell you कि इसका पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो आगे किसी भी छोटी छोटी एक्टिविटीज को वापस से करते हुए, ठीक है? या सो इंस्टॉल्ड करने के लिए आई थिंक ये दिख रही है स्क्रीन सब लोगों को? इज दैट विजिबल? या ओके, यस सर. तो देखो ये जो ऑप्शन है ये आपके पास नहीं आएगा क्योंकि पहली बार आप कर रहे होंगे, है ना? आपके पास ऑप्शन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. तो मैं मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ. जिसने पहले कर लिया है वो वापस से चेक कर सकता है. तो ये जो ऑप्शन है चारों के चारों, है ना, पिप, TCL, TK, पाइथन टेस्ट सूट, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे के सारे टिक होने चाहिए. इससे पहले एक और विंडो आएगी आपके पास, मेरे पास नहीं आई है ना? तो जो नेक्स्ट विंडो आएगी, जो पहली विंडो आएगी उसके अंदर जो भी ऑप्शन आए उसको टिक करना है. एक ऐसा ऑप्शन आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, बोल के, जिससे कि आप जब करेंगे तो प्लीज ध्यान रखना इस चीज का. पाइथन जो भी आपने वर्जन डाउनलोड किया होगा, सपोज 3.6, 3.7, 3.8 जो भी किया होगा, 3.7 ऐड टू पाथ, तो उसका जो एक ऐसा टिक मार्क आएगा, है ना, इसका एक ऑप्शन चेक मार्क आएगा, उसको आपको टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है? एंड जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, डाउनलोड डिबगिंग सिंबल्स या डाउनलोड डिबगिंग, ये करने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको टिक करने की जरूरत है. जैसे कि मैंने टिक किया हुआ है ऐड पाइथन टू एनवायरमेंट वेरिएबल्स. This is very important activity. That's why I'm forcing you to do it, right? And then try to click on install. Okay? Then try to click on install. That's it. तो चार ऑप्शन ये हो गए. इससे पहले ये सारे ऑप्शंस, इससे पहले एक और ऑप्शन आएगा Python 3.6.7 add to path. Okay, so click on that and click on next, 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 and till it will be installed. Okay, so this is how you will be able to install Python. Okay, then once you have installed, एक बार आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद जैसे आप सर्च करेंगे विंडोज के अंदर, है ना, तो आपको कैसे देखने को मिलेगा, देखते हैं. यू विल टाइप हियर टू सर्च इन योर कंप्यूटर अबाउट IDLE. What you will search? IDLE, right? And after searching out this thing, you will see there'll be an option. There could be a multiple option also, right? अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं तो ये चेक करें कि आपके पास कोई दूसरा वर्जन तो इंस्टॉल नहीं है. Python 3.7, 3.8, something like that. So check it over here. Here the option is coming up, IDLE Python 3.6, right? So let me click on this. बहुत सिंपल एक टूल या इसका फ्रेमवर्क है, आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट? दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. इट्स वेरी इजी, आई गेस. ये बहुत आसान है और इसको बस स्टेप बाय स्टेप करना है. ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना प्रोग्राम एक एक करके टेस्ट कर सकते हैं, आपकी कमांड्स टेस्ट कर सकते हैं, राइट? सो हम बात कर रहे थे डेटा टाइप की. तो पाइथन के अंदर कोई भी हेडर फाइल, हैश इंक्लूड, ऐसे कोई भी कीवर्ड्स, वॉइड मेन, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये कीवर्ड बेस्ड लैंग्वेज है, ये इंटरप्रेटर है. आपको केवल इसको कमांड बतानी है, स्पेसिफिक कमांड का स्पेसिफिक मीनिंग होगा. एग्जांपल के तौर पे प्रिंट, अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, राइट, दिस इज योर फर्स्ट program in C language or other language, right? So, but here in Python, it's just a matter of one single sentence. It's just a matter of one single keyword, right? So we were talking about keywords, and
the data types, right? And which is a part of data structure of Python, right? So हमने 5 चीजों की पांच चीजों के बारे में डिस्कशन किया, उसमें एक एक करके हम लोग उसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं. सपोज एक कीवर्ड है मेरे पास, या एक सिंबल है मेरे पास, that is called as a variable, right? So a is a variable, is a specific type of keyword which holds a value of any specific number, right? So this will be called as a number, right? This will be called as a number. अगर आपके पास दूसरा एक वेरिएबल है 23.6, c is equal to a plus b, तो ये ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी डायरेक्ट यहीं पे करके दे देगा, आपको कोई एक्स्ट्रा बैगेज लेने की जरूरत नहीं है, या आपको सेमीकोलन से एंड करने की जरूरत नहीं है, कॉमा लगाने की जरूरत नहीं. द वे यू फील कंफर्टेबल टू राइट इट हियर, जितनी आपको कमांड जैसे मैथमेटिक्स में आती हैं वैसा आप यहाँ पे डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो. ये बेसिक है. अभी आगे चलते चलते हम लोगों को और चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है. तो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट विद द पाइथन आइडियली, राइट? यू कैन चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या हम लोग बी को चेंज कर सकते हैं, क्या सी को चेंज कर सकते हैं. मीनिंग ऑफ सी इज, सी का मीनिंग क्या है? 33.94. आप प्रिंट भी कर सकते हो सी का मीनिंग, राइट? So print command is to print anything, anything मतलब anything in Python. जो भी आपका डेटा टाइप है, चाहे वो वेरिएबल्स हो, चाहे वो टाइप हो, चाहे वो सिंगल कोट्स में कोई डेटा हो, उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड अवेलेबल है. स्कैनएफ की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है. वी विल सी कि स्कैनएफ का ऑल्टरनेट क्या है और कैसे काम करते हैं उस चीज के ऊपर. ओके, सो वी हैव सीन ए एक हमारे पास कीवर्ड है, बी एक हमारे पास कीवर्ड है, इनको ऑपरेट करना है तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं. What if I'll write a is equal to double quotes hello, right? This is one of the another type, okay? And b is still same, b is this 23.6. Can we add both of them now? No, it's not possible. Must be string, not float, right? A and b are not of same type. अगर एक तरह के लोग नहीं है तो आपस में बात नहीं कर सकते हैं, आपस में ऑपरेट नहीं हो सकते हैं, and that's why there's a type error. Okay, right? So what we can do, we can change this b also, hello world, right? Now can we add a plus b, hello world. क्यों आया ये गैप बीच में? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस दिया था. ये स्पेस भी कैरेक्टर है, ये एंटायर एक स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना है, दो को आपस में जोड़ना है. h के साथ w नहीं ऐड हुआ है, ये पूरी स्ट्रिंग के बाद एक और नई स्ट्रिंग आ गई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्केटिनेशन, कैस्केडिंग, राइट? एंड दैट इज पॉसिबल विद दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर, राइट? सो ऑपरेटर्स जितने भी सी के अंदर थे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, या और दूसरी लैंग्वेज में अवेलेबल थे वो यहाँ हैं, चाहे वो ग्रेटर देन, लेट्स देन, इक्वल टू, राइट, प्लस माइनस, जितने भी आपको ऑपरेटर्स देखने को मिले थे वो यहाँ पे हैं, और यहाँ पे कुछ और एडवांस चीजें भी इंप्लीमेंटेड है, वो हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे, राइट? और जो मैंने वीडियो का लिंक आपको बताया है यूट्यूब पे, वो बेसिकली उस पे सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में, जितना मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी डिटेल में, उससे भी ज्यादा डिटेल में जाके मैंने वहां पे समझाया है, जिससे कि एक भी बिट और बाइट की प्रॉब्लम आपको समझने में नहीं आनी चाहिए. मुझे नहीं लगता कि आपके पास उनको देखने के बाद कोई भी पाइथन का डाउट रहेगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए. यू विल सी दैट यू some of you have told कि बेसिक्स ऑफ पाइथन आते हैं, छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं पाइथन के, तो मुझे नहीं पता आपकी डेफिनेशन पाइथन की बेसिक कहने की क्या है, बट एंटायर पाइथन जो आपको कोर लेवल पे आना चाहिए वो मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है, और सारी चीजें बिट बाय बिट डिटेल डिस्कशन में है, और सारी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड है, सबके मीनिंग मैंने प्रॉपर समझाने की कोशिश की. प्लीज एक बार जाना और चेक करना, ठीक है? सो नाउ वी हैव सीन व्हाट वी हैव सीन कि एक वेरिएबल है जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग, अगर नंबर है तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, अगर वो स्ट्रिंग है तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा. हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते. d इज इक्वल टू सिंगल कोट से स्टार्ट किया हेलो और डबल कोट पे एंड कर दिया. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. व्हाट इज दिस? EOL, एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, राइट? सो दिस इज एन एरर. तो ये एरर भी आपको हैंड टू हैंड थ्रो करता है, जिससे कि आपको पता चल जाए कहाँ पे प्रॉब्लम है, राइट? नाउ सो व्हाट वी कैन write either double quote or triple quotes also, hello, triple quotes, and that is also acceptable, right? Now let's talk about another variable called, suppose r is equal to
Yeah, r is equal to small brackets, मैंने लिखा 1,34,56.7 comma single quotes hello comma abc 1 2 3, right? So अब ये r is not defined. What is r? Equal to. Okay, that is wrong. Okay, so to assign something, that should be single equal to, and double equal to means कंपैरिजन, राइट? ये हम लोगों को ऑपरेटर का पता है कि दो ऑपरेटर्स आपस में कैसे बिहेव करेंगे. इक्वल टू अलग चीज होगा, डबल इक्वल टू सिंगल इक्वल टू अलग होगा. सिंगल इक्वल टू मींस you are actually assigning something, and double equal to means you are comparing something. So this r was compared with this particular thing if we are writing double equal to in between. Okay, so let me type it once again. That is this, right? Okay, so r is equal to 1 comma 34, all these things with this bracket. Let's enter it. So r is this, r is this. I want to access this particular information called abc123. So r वेरिएबल से इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का मतलब है आपको इसकी इंडेक्स वैल्यू बतानी पड़ेगी. इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट्स इन पाइथन फ्रॉम 0. This is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Okay, so what you can write, r capital bracket of 4, which means abc 1 2 3, right? ऐसे आपको 56.7 की बात करनी है तो r of 2, right? r of 2 is 56.7. This is called as indexes. This is called as indexes. Okay, now let's talk about the range. मुझे यहाँ 34 से लेके hello तक एक्सेस करना है. तो 34 क्या है? 1. hello क्या है? This is 2, this is 3, right? So 1 से लेके 3 तक एक्सेस करना है. तो यहाँ एक्सेस करने के लिए रेंज को क्या करते हैं पाइथन के अंदर? जहां से करना है और जहां तक करना है उसका एक और नेक्स्ट एलिमेंट बेसिकली हम लोगों को रेंज देना पड़ता है. तो दिस इज अ रेंज. रेंज मींस इन बिटवीन दिस रेंज ओनली व्हाटएवर इज कमिंग शुड बी एक्सेसिबल. ओके, 34, 56.7 एंड हेलो, राइट? वैसे ही अगर मुझे 1 को रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे हम लोग? r of 0 is 1. r of 0 को रिप्लेस करना है तो r of 0 is equal to 1 को हटा देते हैं और इसको 1000 बोल देते हैं. what is the meaning of this particular line? कि हम r of 0 को actually assign कर रहे हैं 1000 value, right? So let us check. The answer is tuple object does not support item assignment, which means कि tuple के अंदर r is a tuple के अंदर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है. एक बार आपने वैल्यू दे दी तो वो चेंजेबल नहीं है, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड एज immutability, right? Immutability, right? Similarly, r की जगह पे एक वेरिएबल लेते हैं s. s is equal to, yeah, so this is not r, suppose this is s, and now the brackets are changed. The brackets are capital. Similarly, s of 0 is 1, s of 1 is 34, s of 2 to 4 is 56.7 and hello, this is your 2 and this is 3, and we are talking about a range. Range कैसे डिस्कस होती है? इस कॉलन से 2 is to 4. Okay, now let's talk about, we want to change this 1 to 1000. So s of 0 that we want to change it to 1000, and let us see what is s now. Now s has got change. 1000 से ये change होके 1 से change होके 1000 बन चुका है, and that is something very important to understand, and that is where is the need of both the data types, the one that we were talking about, a tuple or the list. So lists are mutable, that is also a heterogeneous data collection, and this tuple is also heterogeneous data collection, but this is what we have. This is what we have, the immutable data type of Python, right? Where we cannot change any single identity of Python or any data type. Okay, so now let's talk about the other and the last data type category
of Python, and that is dictionary. Let's talk about a variable. Suppose G is equal to curly braces. Let's see, one has a meaning called 1000. ABC has a meaning called hi, how are you? Instead of writing this hi, how are you, this thing, we are writing ABC. Okay, let's talk about 12.10 is actually 5000, right? So these different methods we can apply. 12.10 is equal to, or is actually equal to 5000, means whenever you will be accessing 12.10, which is a code to access 5000, we are not accessing 5000 directly, right? This is a code to access 5000. Similarly, hi, how are you, this sentence can be accessible with the help of ABC. So because ABC is a string, right? If it is a string, it should be in single quote once again, because we have seen the rule, and rules are same for all the places in Python, right? ऐसा नहीं है कि अभी के लिए कोई और रूल बनेगा और बाद के लिए कोई और नया रूल बन जाएगा. सिंगल कोड्स के अंदर ABC is to hi, how are you, right? So suppose if I'll enter here, now G is one of the dictionary we have. तो अब आपको 1000 एक्सेस करना है. This 1000 should be accessible. Hi, how are you? This should be accessible. 5000 should be accessible. जैसे हम लोग यहाँ 34, 56.7, hello, ये सब चीजें एक्सेस कर रहे थे, तो यहाँ G को कैसे एक्सेस करेंगे? तो G will not be accessible like this. जीरो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, यहाँ पे जीरो नहीं चलता है. यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सेस नहीं चलते हैं, यहाँ इंडेक्स की जगह चलता है की. और की क्या है? यहाँ आपको की से इसको कॉल करना पड़ेगा. एंड द की इज 1. द की इज ABC, राइट? अंडरस्टूड? सो यहाँ आपको एक स्पेसिफिक मीनिंग मिल गया एक स्पेसिफिक की के ऊपर, राइट? सो आपको अगर डेटा को हाइड करना है, बहुत सारा डेटा एक साथ किसी और कीवर्ड पे मीनिंग लेके जाना है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, राइट? सो दिस इज हाउ वी हैव सीन the data types of Python, which is a part of data structure. Data structure in Python is start from these, types only. Here we have seen how to store a particular information in a variable. That variable can be called as a keyword, and these keyword could be of different types, which we have seen as a number, string, tuple, list, and dictionary. All these types are indistinguishable to each other, right? To make it distinguishable, we have notations like single quote, double quotes, triple quotes, small bracket, capital brackets, and curly braces. अगर इनको यूज करेंगे तो हम लोगों को वेरिएबल को समझने में हेल्प मिलेगी. जब भी आपको कर्ली ब्रेसेस मिले, इसका मतलब डिक्शनरी की बात हो रही है, यानी पाइथन इसको डिक्शनरी समझेगी, राइट? सो यहाँ से हम लोग अपनी लाइफ इस जर्नी के लिए स्टार्ट कर सकते हैं. पाइथन के लिए हम लोगों को काफी सारी छोटी छोटी चीजें जानने की जरूरत है. कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, राइट? हम लोगों के पास कौन से नोटेशंस हैं, हमारे पास डेटा टाइप्स कितने हैं, इन डेटा टाइप्स के ऊपर कौन कौन सी ऑपरेशंस हो सकती हैं. जैसे मैंने प्लस माइनस या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की ऑपरेशन यूज की, तो इनका क्या असर होने वाला है हर अलग डेटा टाइप पे. जी को जी से माइनस करता हूं, जी माइनस जी, will it be working for us? No, right? But G plus G, this is how it is. See, for dictionary, it's not possible. Similarly, we had a variable called C, we had a variable called B, we had a variable called A plus B possible है, बट ये G plus G possible नहीं है. तो कितनी ऑपरेशन ये हम लोग कर सकते हैं, इनका सबका बहुत बड़ा फायदा और रोल है ना. इसलिए मैं आपको इस चीज पे स्ट्रेस दे रहा हूँ. सो मैं वापस से बोल रहा हूँ, वी हैव अ चैनल, राइट, नेम्ड एज LNB कोर, लर्न एंड बिल्ड कोर, राइट, ऑन यूट्यूब. वहां पे प्लेलिस्ट के अंदर जाके पाइथन की जितनी भी वीडियोस हैं, उसकी स्टार्टिंग की जो 7 वीडियोस हैं, 7 वीडियोस, वो हम लोग अगर कर लेंगे तो अगले लेक्चर से, और उसको करने में बहुत कम टाइम लगेगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिकॉज आप लोग जितना स्लो मैं बोल रहा हूँ उतना स्लो नहीं देखेंगे. वहां चीजें आप अलग अलग फेजेस में देख सकते हो, थोड़ा सा फास्ट मोड में देख सकते हो, राइट? सो दैट, एंड प्लीज प्रैक्टिकली टेस्ट इट ऑल्सो. ऐसा मत सोचना केवल सुन लिया, सुनने से याद नहीं होगा. जो चीज आज याद रहेगी वो कल याद नहीं रहेगी. लेट मी टेल यू
वेरी क्लियरली। सुनना नहीं है हम लोगों को, प्रैक्टिकल इसको इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिकली। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, python.org पे जाना है, बहुत ईजी है प्रोसेस। इस वीडियो को वापस से एक बार देखेंगे, वहां पे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आइडियली ओपन करेंगे, वहां पे जितनी चीजें मैंने बोली हैं वो यूज करके देखेंगे। जैसा जैसा इन्वॉल्व होंगे, अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपको वो चीज समझ में आने लग जाती है, वो आपको अच्छी लगने लग जाती है। अगर आप इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, अगर आप उसकी तरफ जाएंगे नहीं, केवल एक बार सुन लेंगे, मैथमेटिक्स क्यों अच्छी नहीं लगती है काफी लोगों को, तो जिन लोगों को स्टोरी सुनना पसंद है, मैथमेटिक्स नॉट टू एक्चुअली लिसन अबाउट दी स्टोरीज, इट्स अबाउट टू फैक्टली चेक ऑन दी इम्प्लीमेंटेशन साइड। तो मैथ काफी लोगों का वीक इसलिए है क्योंकि उनको स्टोरी सुनना पसंद है। फिजिक्स में स्टोरी हो सकती है यूनिवर्स की, बहुत सारी अलग तरह की फॉर्मुलेशन की, बहुत सारी अलग तरह की थ्योरीज की। सिमिलरली बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज हो सकती हैं केमिस्ट्री के अंदर भी, बायोलॉजी के अंदर भी, हर फील्ड में हो सकती है। थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है वहां पे। यहाँ प्रैक्टिकली हम लोग मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ थ्योरी नहीं चलेगी। यहाँ आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा प्रैक्टिकली, बेसिकली हर चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। कोई भी दिक्कत आती है, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, सो दिस इज व्हाट इज देयर फॉर टुडे इन दिस किटी। बहुत बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया, पाइथन के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं केवल 2 दिन और लूंगा, किसी का क्वेश्चन हो सकता है, कोई मुझसे बाद में पूछेगा सर कितना टाइम और लगेगा पाइथन को, इस चीज को आपको कवर करने में, इस मशीन लर्निंग के लिए। फॉर नेक्स्ट 2 more days आई विल बी एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट पाइथन, द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू यूज फॉर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, है ना। पूरा पाइथन हम लोगों को यूज में नहीं आने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं पाइथन के अंदर, वो सारी चीजें मैथमेटिक्स की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए या कैलकुलेशन करने के लिए सब कुछ यूज में नहीं आने वाला है। जितना यूज में आएगा मैं वो पूरी चीजें 2 दिन में कवर करूंगा, है ना। मैंने आपको बताया अभी 7 वीडियोज हैं, आप उनको देखें। अगर आपको फिर भी डाउट होता है उन वीडियोज को देखने के बाद में, आप क्वेश्चन पूछें, ग्रुप पे कभी पूछ सकते हैं पूरे दिन भर में, राइट। जब भी आप देख रहे हो, रात भर में देख रहे हो तो पूछ सकते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस सेशन, जब हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले पूछ लें या कंप्लीट करने के बाद में पूछ लें, राइट। सो दिस आई बिलीव if you will involve, if you will implement things parallelly, if you would have some doubt, will be sorted out parallelly, one by one to all of you. And after 5 days to 7 days of time, I'm sure we'll be capable of actually developing some programs by our own, and we'll be on a scale where जो छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स हैं इस डोमेन के, वो हम लोग कर पाएंगे, ठीक है ना। अभी कोई क्वेश्चन है आज का, प्लीज पूछें, otherwise we'll hold this meeting, and tomorrow once again we'll start the session by 6 o'clock, sharply at 6 o'clock. Anybody, any question please? Any question, anybody? Okay, no question, very good, it was very easy. मतलब आप ये समझ सकते हो कि यार आज तो हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, हमने केवल एक सुन लिया, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें कनेक्ट होने वाली है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एवरी नेक्स्ट डे is going to be connected with the previous lectures, इसलिए ये पूरा कुछ सीरीज में है, सबकी एक छोटी छोटी कड़ियां हैं जो आपस में मिलने वाली हैं, है ना। तो इतना जीरो लेवल से, छोटे लेवल से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो I think it is all clear. Tomorrow we'll meet once again by 6 o'clock. Till then, bye-bye. Enjoy and go on the videos on YouTube and check all those videos which I have shown you basically. Start from 2nd video and watch it till 7th video. Okay. Done. Thank you, sir. Bye, sir. Bye-bye. Thank you. Thank you, everyone.